by ICI. He has work experience of 23 plus years as a practitioner chartered accountant. He is an expert in the field of direct taxes. He has handed on experience in providing advisory service, handling assessment, reassessment, and assessment in such cases. And in first appeal, successfully argued at the various matters relating to direct taxes before Income Tax Tribunal, Ahmedabad. He is the author of a comprehensive book on direct taxes, laws, and international taxation, 5th edition, and also authored e-books on practical aspect of Finance Act 2010 to 2020. He is a member of the Income Tax Appellate Tribunal Bar Association Ahmedabad. He is a member of Telecom Association Ahmedabad, and he was a co-op member of Direct Tax Committee of Ahmedabad branch of ICI 2019-20. He is a very keynote speaker at the various branches of ICI, ICSI, CS Telecom Association Ahmedabad, Direct Tax Committee ICI. Also, he is a keynote speaker at the All Gujarat Federation of Tax Consultant, IT Bar Association, Tax Advocate Association, and Gujarat National Law University. I'm not taking much of time. I handed over virtual platform to CA Mehul Thakkar sir for today's seminar. Thank you, Mehul. Thank you, Chavda sir, for giving me this opportunity to share my views on this budget 2022. I think because of online platform, we have forgotten one general tradition of having some remembering God. So let us start with remembering God first, and then we should pick up the topic for which I have been invited. Vasudeva Sutam Devam Kansa Chanur Mardhanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagat Gurum Krishnam Vande Jagat. Good evening all. Study circle is small or big is not an here issue. What Chavda sir was telling, that study circle is small and sir has given his consent. It is, even if 3 members would be attending, then it would be also a great advantage to all of the 3. So it is not like small or big thing. Thank you, sir. Now let us start with that topic for which I have been invited today, the Budget Finance Bill 2022. Lot many, we can say that expectations were there, even lot many negative thinkings were also going on. Negative now we can say, but lot many expectations were also there, that there will be a tax, special wealth tax may be reintroduced, or special tax may be introduced for rich persons. There is a possibility of increasing the tax rate in long-term capital gain. The various expectations and various speculations we had made before this finance bill was tabled before the parliament. Interestingly, none of them had been taken care of in Finance Bill 2022. Rather, it was a straightforward, simple set of tax proposals in this budget. Of course, economic development, various aspects in budget they have considered to accelerate the economic growth of this country. Now, I have invited for direct tax proposals. I will not take other aspects of economic aspect of the budget, but we will stick to the direct tax proposals. Looking to direct tax proposals, it seems that they are very few, but it is not the reality, honestly speaking. Direct tax proposals, our Honorable Finance Minister had not dealt in detail while delivering the budget speech. And it was the shortest budget speech in last 5 years, if you look at. That was the analysis going on budget. It was shortest speech, and what I can tell you that intentionally certain aspects had been omitted in budget speech, intentionally. Otherwise, it may create a negative, or we can say slightly a disturbing disturbance among the listeners and the, we can say, these country people. With various proposals, they made it very strict and very, we can say, honestly speaking, that there are certain settled aspects, but they made it unsettled by changing the law. So far as faceless assessment is concerned, it was a, we can say that not a success. We cannot say it's a big failure, but faceless assessment is not a success because every high court where the people knocked the door of high court and
Many of the cases, High Court, not many, all the cases, High Court have struck down the orders passed by the officers under faceless regime because of various reasons. Somewhere the opportunity of being heard through video conferencing had not been given. Somewhere draft order had not been delivered. Somewhere the procedure laid down under faceless regime had not been followed. So that orders of assessing officers had been struck down by the various high courts across the country. And in that faceless also they made many changes that also we will come across. So there are various, or if you look at the changes in trust that I will also share in detail, then trust, more particularly charitable trust or charitable institution, I request all of the practicing member to be very much careful because we are signing audit report. And this time they made it extreme. We can say that if there is a slightest violation in favor of trustee, some benefit is being passed on or related parties as enumerated under section 13, subsection 3 of the Income Tax Act, then there are huge penalties and there will be a huge setback on the trust in terms of a special tax rate they have introduced for that violation. And it may result into a cancellation of registration as well. Therefore, be careful while signing the audit report of the trust. I will share the amendments in detail. I think let me start with close by close analysis. It may take perhaps 2 hours. I'm not sure, 2 hours, maybe it may take 10-15 minutes more also. I am sharing the screen, so kindly pay attention. What I have done is I have taken up memorandum itself. Memorandum जो है वही मैंने discussion के लिए रखा है, and I have underlined certain areas that I am going to deliberate, discuss, debate in today's session. So let us look at what memorandum says, and I have made certain extra provisions also I have noted down for our discussion in today's session. Memorandum says that we have made various proposals for amending the law, and we are going to group them in A, B, C, D, E, F, G. A deals with rates of income tax. B deals with promoting voluntary tax compliance and reducing tax litigation. This is what very important for practice purpose. Then they also made out some socio-economic welfare measures. They have made certain provisions widening and deepening tax base. Some more like cryptocurrency tax, special tax regime has been introduced for revenue mobilization. Certain exemptions are going to be phased out. You are not in a position to claim them. And some provisions, they made it rationalization because there were drafting errors in the act itself, which we have noticed initially also, but this drafting error continued for a longer period. So now they understood that this drafting error in the few of the provisions of the Income Tax Act need to be corrected. So that is called rationalization measure. So in short, we have got A, B, C, D, E, F, G. Over 7 heads, we need to see the direct tax proposals in detail. Let us look at first and foremost is rates of income tax. Honestly speaking, rates of income tax had not been changed, except the surcharge, they made a change, which I am highlighting. Kindly pay attention on the screen. In surcharge, they have made a change because we know that surcharge may go up to 37% if total income exceeds 5 crore rupee. But here they have restricted the rate of surcharge. I am reading this part. Provided that where total income includes income by a dividend or income chargeable under 111A or 112 or 112A. That means if there is a total income includes dividend, if total income includes short-term capital gain under 111A or long-term capital gain under 112 or 112A, तो surcharge का जो rate है, that they have now restricted up to 15%. So irrespective, even if your total income exceeds 2 crore or it exceeds 5 crore, you should not worry. The rate of surcharge for these income should not exceed 15%. So this is a wonderful welcome step for reduction in tax liability. But if you look at otherwise, then this will give benefit to very few, those who are declaring income more than 2 crore or more than 5 crore. Similarly, this was very much needed actually.
because these created lots of undue hardship to the association of persons. Because whenever you look at AOP, in AOP taxation, the word written under the Act, special scheme is there. મણિભાઈ ને વળીએ યાદ કરું વિજાપુર Maximum, I request all participants to mute themselves. શોધતા હતા જમીન એ પાછું એના ઉપર આપણે વિચારવું પડશે. આપણે એને લાંબુ ટાળી ના શકીએ અને જો આપણું ભવિષ્ય ઉજળું રાખવું, કારણ કે આપણી આ 12 ગામની સમાજ છે, આપણે જે એક સંપ છીએ, આપણે બધું કરી શકીએ એમ છીએ. આટલા વર્ષ આપણે સમૂહ લગ્ન બહુ સારી રીતે કરી શક્યા, તો આપણે આપણું સ્થળ, આપણો પાયો ક્યાંક મંડાણ કરવાનું આપણે ચોક્કસ સિરિયસલી વિચારવું પડશે, પોઝિટિવલી. આ વર્ષનો અનુભવ આપણી સામે રાખીને. અસ્તુ. જયારે આપણને બાદોલ થી મ્યુટ કરો ને, જણા હતા, પૂછ્યું નતું અને આપણે ત્યાં ને ત્યાં નિર્ણય લઈને ફાઇનલ ડિસિઝન કર્યું કે ના, આપણે પ્રસંગ કરવો છે. એ બદલ 2 કે 3 જણા જે હતા અને એમને જવાબદારી લીધી, એ બદલ આપણે ખૂબ ખૂબ આભાર વિશેષ સમાજવાળાને. આ વસ્તુ હેલી નથી, 12 ગામની જવાબદારી લેવી હેલી નથી, પણ એ 3 જ જણા હતા, એની સમાજ ઉપર વિશ્વાસ રાખીને ડિસિઝન લઈ લીધું, નક્કી કરી દીધું ભાઈ બાનું આપી દો. એટલે ખરેખર અભિનંદન, ધન્યવાદ. સાકાર થતું દેખાયું આપણને. એમની હિંમત ને લીધે બધા ડિસિઝન લઈ શક્યા. ખરેખર માણસા ના વડીલોને ખરેખર ધન્યવાદ. એકદમ સફળતાપૂર્વક કરશે. આપણે બાદોલ ને પણ ભૂલી જશું એવો પ્રસંગ કાલે બનવાનો. જવાબદારી અમે કરવા તૈયાર. પ્રમુખ શ્રી ડાયા બાપાને એમના 2 શબ્દો કહી અને કાર્યકર્તાઓનો ઉત્સાહ વધારે એવો વિનંતી કરું. ડાયા બાપા. મારા સાથીદાર મિત્રો, મારા વર્ગના સદસ્યો, પાર્ટી પધારેલા મહેમાનો, સૌને મારું સ્વાગત. આપણે કે વિશ્વાસ સમૂહ લગ્નનો આખરી ઓપ આપી રહ્યા છીએ. એમાં તમને દિનેશભાઈ, શંકરભાઈએ બધી સૂચનાઓ આપી છે. એ સૂચનાઓને તમે કેવી રીતે પાર પાડશો અને આ કાર્યક્રમ વધારેમાં વધારે દીપી ઉઠે એવી તમારી પાસે હું આશા રાખું. અને સ્વયંસેવકો ભાઈઓ ઘણા ઓછા આવ્યા છે, એમાં થોડાક વધારે આવે. શું છે, કાર્ય જવાબદારી એની છે. સવારમાં જવાનો વહેલી આવે. હેલો રંગાની ભાઈ, તમારે સ્વિચ ઓફ કરો ને, માઇક કરો ને બંધ. ટેકનિકલ ભૂલ થઈ ગઈ, આપણે સૌને ભૂલ કરી આપી. તમને જે તમારે જે છે બધું એમનો સપોર્ટ બહુ સારામાં સારો સપોર્ટ હતો સમાજના. એને કહ્યું તમે એટલા માણસ એટલી એને છૂટ આપી. બોલો. તો હેલો. બરોબર. આઈ થિંક કંટ્રોલેબલ છે હવે બધું એન્વાયરમેન્ટ. ના, એમને ડાયરેક્ટ ફોન કર્યો. કશું આવે. ચાલો. I request participant to come back to the discussion. કાર્યની કસોટી કાલે છે. ના, હજી પણ એમનો અવાજ ચાલુ છે. સૌ પાસે આશા રાખી. એમને કોને કે તમે એટેન્ડ ના કરવો, તમે લેક્ચરમાંથી એક્ઝિટ લઈ લો ને. હા, એ તો તમે કોઈ એક્ઝિટ લઈ લો અત્યારે, પછી તમે પાછળથી જોઈન કરજો, કે બીજા બધા ડિસ્ટર્બ થઈ રહ્યા છે. તમે બહાર નીકળી જાવ ને.
રોહિલ ભાઈ તમે એમને કહો કે સેમિનારમાંથી બહાર નીકળી જાય, ઝૂમમાંથી બહાર નીકળી જાય. રંગાણી સાહેબ તમારી ટોક પતી ગઈ? રંગાણી સાહેબ, let us continue. AOP I was talking about. So AOP were in difficulties, more particularly because the surcharge was 37%. So now they have slightly made a change. But this change, what we have listened during budget speech, is not exactly like that. If you read, AOP consisting of only companies as its members, then rate of surcharge shall not exceed 15%. यानी ऐसे AOP जिसके अंदर सिर्फ कंपनीज मेंबर है उनके लिए ये सरचार्ज का रेट कम किया गया है. It was not like what we understood during the budget speech. It was completely different. It was for limited members of AOP, where the companies only are the members of AOP. Now, so there are no much changes as regard to the rate of tax. I am not touching on that part. Now, let us look at this is very, very important. The next B section deals with promoting voluntary tax compliance and reducing tax litigation. In this, we have heard during budget speech that new subsection has been introduced for filing the updated return. This is very, very interesting provision they have came out, that you can file your updated return even after the time limit for filing original return has expired, or time limit for filing belated return as well as revised return has expired. Now, what is the reason for introducing this provision is very interesting. I am reading the background of the proposal, why this new section has been introduced. Then they say that this provision, more particularly belated return and revised return, it provides generally 5 months time to individual, 2 months time to company or heritable case, and 1 month times those who are in transfer pricing and they entered into international transaction or specified domestic transaction to file their belated return or revised return. And government itself writes in a budget speech memorandum that this timeline of belated and revised return is not adequate. Why it is not adequate? When we look at the huge information data available with them. So this is very interesting. What here the proposal says कि 139(4) और 5 जो belated return और revised return के जो provisions हैं, उसके अंदर जो टाइम लिमिट है अवेलेबल, एक्स्ट्रा टाइम लिमिट, जैसे हमें मालूम है कि काफी एसएससी की ड्यू डेट रहेगी जुलाई और हम बिलेटेड रिटर्न या रिवाइज रिटर्न फाइल कर पाएंगे दिसंबर तक, तो उनके लिए 5 महीने मिल रहे हैं. 2 महीने कंपनी के लिए, क्योंकि उनकी डेडलाइन नॉर्मली अक्टूबर ड्यू डेट फाइलिंग है, कंपनी ऑडिट वाले केस है, उनको 2 महीने मिल रहा है बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न को लेकर, और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को 1 महीना मिल रहा है. और गवर्नमेंट इटसेल्फ राइट्स दैट दिस टाइम लिमिट इज नॉट एडेक्वेट. Now, when you really feel that it is not adequate, then why you curtail that time limit in earlier budget then? Which is something strange. अगर आप ही फील कर रहे हैं कि टाइम लिमिट एडेक्वेट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एसएससी के डेटा और एसएससी के पास भी इतना डेटा और इतने सारे कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट होगी आईटीआर को फाइल करने को लेकर, इतना सारा डेटा फिलअप करना है हमें. तो when you really feel कि एसएससी may not have enough time, then you would have continued the old belated provision and revised return provision. तो अब वो लिख रहे हैं कि हम एक नया रिजीम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं वॉलंटरी टैक्स कंप्लायंस पुश अप्रोच. एसएससी खुद अगर चाहे तो उसका रिटर्न अपडेट कर सकता है, इसलिए उन्होंने बताया कि हम नया प्रोविजन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. और नया प्रोविजन का बेनिफिट हम ले पाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर यू हैव फाइल रिटर्न प्रीवियसली और नॉट. यानी मान लो आपने ओरिजिनल रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न, रिवाइज रिटर्न नहीं फाइल किया है,
तो भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं. तो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. The point is to be noted that updated return can be filed even if you have not filed original return, belated return or revised return. यानी सीधा सीधा फ्रेश रिटर्न फाइल कर सकते हैं इस प्रोविजन में. अब ये प्रोविजन क्या है? तो दिस प्रोविजन इज सबसेक्शन 8A of section 139. Now what subsection 139(8)(a) says, that I am reading the relevant part because the entire section they have drafted here. But this I have already said, whether return has been furnished or not, he can file updated return. He can furnish updated return within 24 months from the end of EY. यानी असेसमेंट ईयर खत्म होने के 2 साल तक हम अपडेटेड रिटर्न फाइल कर पाएंगे. दैट इज व्हाट दे हैव रिटन इन सबसेक्शन 8A, point number A. Now they have written that provision of this subsection shall not apply. यानी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे कब? अगर अपडेटेड रिटर्न आपका लॉस का है या उसकी इफेक्ट आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी कम करता है. मान लो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं पर आपने जो पुरानी टैक्स लायबिलिटी दिखाई थी उससे आप टैक्स लायबिलिटी कम दिखा रहे हैं. तो ओरिजिनल रिटर्न यू हैव फाइल अंडर 139, 1, 4 और 5 और आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं जिससे आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो रही है या आपका रिफंड निकल रहा है या आपका रिफंड इंक्रीज हो रहा है एज कंपेयर टू ओरिजिनल रिटर्न और बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न, देन दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई. दिस इज नेचुरल. तो अपडेटेड रिटर्न में आपको एडिशनल टैक्स देना है. कहने का मतलब ये है कि अगर आप लॉस दिखाना चाहते हैं या आप टैक्स लायबिलिटी कम करना चाहते हैं या आप रिफंड बढ़ाना चाहते हैं, देन दे सेड सॉरी, आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे. इसके अलावा उन्होंने एक और भी लिस्ट तैयार किया है कि फॉलोइंग पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल टू फर्निश अपडेटेड रिटर्न. कौन से लोग हैं? जिनके यहाँ सर्च हुआ है, जिनके यहाँ सर्वे हुआ है. तो जिनका सर्च हुआ है, सर्वे हुआ है, या अदर पर्सन, जैसे हम लोग जानते हैं 153C के प्रोविजन है. मान लो मेरे यहाँ सर्च हुई और मेरे यहाँ से डॉक्यूमेंट मिले राकेश के या गिरीश के या चिंतन ठक्कर के, और असेसिंग ऑफिसर ने, मेरे असेसिंग ऑफिसर ने नोट डाउन किया कि ये चिंतन ठक्कर, राकेश और गिरीश की भी इनकम कुछ ऐसी है कि which they have not disclosed to the income tax department. That's why they have passed on this information to the assessing officer having jurisdiction over Chintan Thakkar, Girish and Rakesh. तो ऐसी अगर कोई नोटिस इशू हुई है जो अब पहले पुरानी 153C बोली जाती थी, अब ये सारा रिजीम हो गया 147 के अंतर्गत. तो ऐसे केस में चिंतन, गिरीश और राकेश भी रिवाइज या अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे. लेकिन कितने साल के लिए नहीं फाइल कर पाएंगे, दैट आल्सो दे हैव क्लैरिफाइड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दे कैन नॉट फाइल अपडेटेड रिटर्न फॉर टोटल 3 years. एक तो जिस साल में सर्च हुई वो साल, यू कैन सी the assessment relevant to the year in which search is initiated, and 2 assessment year preceding this assessment year. In short, total 3 साल के लिए, जिस साल सर्च हुआ उस साल के लिए वो अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे. as well as earlier 2 years, राकेश, गिरीश और चिंतन, as well as अगर मेरे यहाँ रेड हुए तो मैं भी I cannot file the updated return. इसके अलावा उन्होंने और भी क्लैरिफाई किया है कि अपडेटेड रिटर्न cannot be filed where, और कुछ और लिस्ट दिया है, where they have said, first and foremost, updated return has been furnished by him under this section. So this is very very important. यानी एक बार मैंने अपडेटेड रिटर्न फाइल कर लिया, ध्यान से समझे, एक बार मैंने अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दिया, then I cannot file second updated return. जैसे नहीं हम एक बार हमने रिवाइज रिटर्न फाइल किया तो we can furnish second रिवाइज रिटर्न, ऐसा राइट अपडेटेड रिटर्न को लेकर नहीं है. यानी एक बार हमने अगर अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दिया, देन दिस सेक्शन इज ओवर. इसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा है कि अगर आपके केस में 147 या रिवीजन चल रहा है, 147 और 263 चल रहा है, आइदर इट इज पेंडिंग और इट हैज बीन कंप्लीटेड, तो उस साल का आप रिटर्न अपडेटेड फाइल नहीं कर सकते जिस साल का आपका 147 पेंडिंग या कंप्लीट हो चुका है, या आपका 263 पेंडिंग है या कंप्लीट हो चुका है. इसके अलावा अगर असेसिंग ऑफिसर के पास कोई इंफॉर्मेशन है अंडर ब्लैक मनी एक्ट और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और वी कैन से स्मगलर्स फॉरेन एक्सचेंज एक्ट और बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट, एंड सेम हैज बीन कम्युनिकेटेड टू द टैक्स पेयर प्रायर टू द फाइलिंग ऑफ रिटर्न,
तो AO is having information, and these information has been communicated to the taxpayer before SSC submit the updated return. तो फिर SSC updated return फाइल नहीं कर पाएगा. उसी तरह सेक्शन 1990A डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, उसको लेकर AO के पास इंफॉर्मेशन है और वो उन्होंने SSC को कम्युनिकेट कर दिया है. तो कम्युनिकेशन मिलने के बाद SSC कैन नॉट फाइल अपडेटेड रिटर्न. उसी तरह अगर चैप्टर 22 में प्रोसिक्यूशन इनिशिएट हो चुका है टैक्स पेयर के ऊपर, अगर कोई भी प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग इनिशिएट हो चुकी है, देन आफ्टर इनिशिएशन ऑफ पेनल्टी प्रोसीडिंग्स SSC कैन नॉट फाइल अपडेटेड रिटर्न. इसके अलावा उन्होंने और भी लिखा है कि वी विल नोटिफाई इन फ्यूचर, बोर्ड विल नोटिफाई द लिस्ट ऑफ पीपल दैट दे कैन नॉट फाइल अपडेटेड रिटर्न. तो इफ यू रियली लुक एट दिस प्रोविजन अपडेटेड रिटर्न, तो देखने जाए तो नेगेटिव लिस्ट बहुत है, कौन कौन लोग ये फाइल नहीं कर पाएंगे. बट एक बात पक्की है कि यू कैन नॉट क्लेम हायर रिफंड, यू कैन नॉट डिक्लेयर लॉस, यू कैन नॉट रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी. That is not possible while filing updated return. And they also made it clear, search survey 147, Money Laundering Act, Benami Transaction Act, ऐसी situation में अगर आप उसमें fall हो रहे हैं, then also in that cases, in those cases you are not eligible to file updated return. And they also, in certain cases, they say that if information is communicated after that date, you cannot file updated return. And second updated return is also not possible. That also they have clarified. अब ध्यान दें, बजट स्पीच जिन लोगों ने सुना था, अपडेटेड रिटर्न को लेकर उन्होंने क्लियरली बताया था कि यू हैव टू पे एडिशनल टैक्स. तो लेट अस अंडरस्टैंड दैट व्हाट दिस एडिशनल टैक्स मेंट एंड हाउ इट इज गोइंग टू बी कैलकुलेटेड. तो आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, पे अटेंशन. उन्होंने 139(9) में भी एक छोटा सा अमेंडमेंट किया है कि अपडेटेड रिटर्न विल बी ट्रीटेड एज डिफेक्टिव अनलेस यू हैव अटैच्ड द प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स. और टैक्स पेमेंट आपको करना है, नई सेक्शन उन्होंने लगाई है 140B. नॉर्मली जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो हम सेल्फ असेसमेंट टैक्स चुकाते हैं, जब वो रहता है सेक्शन 140A के अंतर्गत. यहां उन्होंने सेक्शन दिखाया है 140B. तो ये नया 140B क्या कहता है, लेट अस सी. 140B सेज अगर आपने रिटर्न पहले फाइल नहीं किया है और आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहते हैं 139 सबसेक्शन 8 के अंतर्गत, तो आपको क्या चुकाना है? आपको टैक्स चुकाना है, इंटरेस्ट चुकाना है, लेट फी चुकानी है. और ध्यान से देखें, अलोंग विथ पेमेंट ऑफ एडिशनल टैक्स. तो मान लो आपने पहले कोई रिटर्न फाइल ही नहीं किया और नाउ यू वुड लाइक टू फाइल द रिटर्न अंडर 139 सबसेक्शन 8A. If that would be the case, then in that situation, they said, okay, you can file updated return, you have to pay tax, you have to pay interest, you have to pay late fee, also you have to pay additional tax. And they have said that how to calculate tax. So that is logical. Tax हम कैसे निकालेंगे? तो tax would be on total income, उसमें से हम कौन सी क्रेडिट लेंगे? एडवांस टैक्स, TDS, जो भी रिलीफ 89 की या डबल टैक्सेशन की रिलीफ है, या मैट क्रेडिट की जो सेट ऑफ है, तो वो सारा माइनस करके जो बनता है, दैट इज योर टैक्स कैलकुलेशन, दैट इज योर टैक्स. नाउ आई एम कमिंग टू दैट, हाउ टू कैलकुलेट एडिशनल टैक्स. पहले ये उन्होंने लिखा है कि अगर रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आपका टैक्स पेएबल इस तरह कैलकुलेट किया जाएगा. ठीक है. और उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि अपडेट रिटर्न जब भी आप फाइल करेंगे, आपको ये टैक्स, फिर एडिशनल टैक्स, इंटरेस्ट और फी चुकाना है. तो आपको टैक्स भी चुकाना है, इंटरेस्ट भी देना है, लेट फी देनी है, एंड एडिशनल टैक्स. ये एडिशनल टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, आई एम कमिंग टू दैट. लेकिन अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो टैक्स इस तरह निकालना है, विच इज लॉजिकल, जैसे हम निकालते हैं टैक्स. अगर मान लो आपने रिटर्न फाइल कर दिया है तो आपका जो टैक्स निकलेगा, दैट हैज टू बी एडिशनल टैक्स. जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मान लो my original return filed is, for example, 8 lakh rupee, and roughly I'm just putting rough estimate, my tax liability is 80,000 for an example. Now I am filing updated return और मैं total income दिखा रहा हूँ 10 लाख रुपए. ठीक है. Already I have filed the return of 8 lakh. I already on 8 lakh 80,000 rupee. Now I am filing updated return of 10 lakh rupee. ठीक है. तो 10 लाख का जब मैं टैक्स निकालूंगा, लेट अस टेक इट कि टैक्स वर्क्स आउट टू बी 1 लाख रुपी. आई एम जस्ट टेकिंग फ्लैट रेट 10%, फॉरगेट एजुकेशन सेस एंड एवरीथिंग. तो 1 लाख रुपए जो टैक्स बन रहा है, तो हाउ मच आई एम रिक्वायर्ड टू पे?
I am not required to pay 1 lakh because 80,000 already I have paid. So I should be given credit of 80,000, which is logical. So I should pay tax payable when already I have filed the return. Then my tax payable should be 20,000. So that they have said that you will get credit of tax paid at the time of original return. That is what they have clarified. So here tax payable would be like this. It should be an additional tax of 20,000 in this example. Now very, very important. Additional tax कैसे निकालना है? Now pay attention to the screen. Additional tax shall be equal to 25% of aggregate of tax and interest payable as determined in sub paragraph 1. अभी हम देख रहे हैं सब पैराग्राफ 3, सब पैराग्राफ 1 और सब पैराग्राफ 2 अबोव. कितना हमें एडिशनल टैक्स चुकाना है? 25%. I'll give you an oral example. If return is furnished after the expiry of time available under bill return and before completion of period of 12 months from the end of relevant assessment year. तो अगर आप after the date of filing belated return and revised return is over and before the completion of 12 months from the end of relevant AY, in this deadline if you are filing, then you have to pay additional tax of 25%. On the other hand, if you are filing after 12 months and up to 24 months, then additional tax payable shall be 50% of tax and interest payable as determined in paragraph 1 or 2 above. And they have also clarified that additional tax includes surcharge and education cess by water and court. So let me explain that what these additional tax, how it would be calculated. तो यह आइडिया क्या है उनका कि आप अपडेट रिटर्न फाइल कर सकते हैं आपकी रिवाइज रिटर्न की और बिलेटेड रिटर्न की डेट खत्म होने के बाद 12 महीने फ्रॉम द एंड ऑफ एवाई, यानी एवाई के 12 महीने तक और बिलेटेड रिटर्न की डेट खत्म होने के बाद अगर आप अपडेट रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आपको 25% एडिशनल टैक्स चुकाना है. तो एक एग्जांपल जो मैंने कंटिन्यू किया था कि जहां आपने ओरिजिनल रिटर्न दिखाया था 8 लाख का और आप जो अपडेटेड रिटर्न दिखाने चाह रहे हैं वो है 10 लाख का है और आपकी एडिशनल टैक्स लायबिलिटी बन रही है 20,000 रुपए. तो इन दैट सिचुएशन जो 20,000 है उसका एक्स्ट्रा 25%, 20,000 तो चुकाना ही चुकाना है, टैक्स तो चुकाना ही चुकाना है, एक्स्ट्रा 25% आपको देना है एज ए एडिशनल टैक्स. बट वेरी इंटरेस्टिंगली जो 20,000 मैंने आपको टैक्स कैलकुलेशन बताया दैट वाज टैक्स ओनली. अब उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा क्योंकि आप अपडेट रिटर्न फाइल कर रहे हैं लेट, तो आपको 234B का ब्याज भी देना पड़ेगा. 234A मान लो किसी ने रिटर्न ही फाइल नहीं किया, देन ही हैज टू पे 234A इंटरेस्ट आल्सो. तो 20,000 और मान ले फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट बन रहा है उसके ऊपर 10,000 रुपए फॉर एग्जांपल, मान ले फॉर एन इजी कैलकुलेशन इंटरेस्ट बन रहा है 10,000 रुपए. तो जब मैं एडिशनल टैक्स कैलकुलेट करूंगा 25%, देन द 25% शुड नॉट बी ओनली ऑन टैक्स, इट शुड बी टैक्स प्लस इंटरेस्ट. It should be tax plus interest. Thank God लेट फी का वो एडिशनल टैक्स नहीं ले रहे. लेट फी वो जो है वही लेंगे, बट टैक्स प्लस इंटरेस्ट जो एडिशनल टैक्स बन रहा है और जो एडिशनल इंटरेस्ट बन रहा है वो दोनों को टोटल करके उसका 25% यू हैव टू पे एडिशनल टैक्स टुगेदर विथ इंक्रीमेंटल टैक्स एंड इंटरेस्ट. आई थिंक यू आर ऑल क्लियर ऑन दिस. देयर शुड नॉट बी अ कंफ्यूजन. अगर कंफ्यूजन है तो हम लास्ट में देखेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन में. तो आइडिया इज जो भी आप इंक्रीमेंटल इनकम दिखा रहे हैं उसका इंक्रीमेंटल टैक्स प्लस इंटरेस्ट ये दोनों तो चुकाना ही चुकाना है, प्लस लेट फी है तो लेट फी भी चुकानी है और एडिशनल टैक्स एडिशनल इंटरेस्ट दोनों का टोटल करके उसका 25% अगर आप 12 महीने के अंदर अंदर अपडेट रिटर्न फाइल कर रहे हैं फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट ईयर. अगर आप 12 महीने के ऊपर जा रहे हैं अप टू 24 मंथ्स तो आपको चुकाना है 50%. और जिस बंदे ने रिटर्न ही फाइल नहीं किया है उसकी हालत तो और खराब हो जाएगी. और ये दोनों के लिए हाउ टू कैलकुलेट 234ABC उसका भी उन्होंने प्रोवाइज लगाया. आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल फॉर 234ABC बट दे हैव मेड इट प्रैक्टिकल. जैसे मान लो किसी ने रिटर्न ही फाइल नहीं किया है तो 234A विल कंटिन्यू अप टू व्हाट, अप टू द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न. सेम में 234B विल कंटिन्यू अप टू व्हाट, डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न. तो दैट दे हैव क्लैरिफाइड. और उन्होंने ये भी देखा है कि अगर आप एडिशनल इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं तो आपको जो एडिशनल टैक्स है उसके ऊपर आपको एडिशनल 234B भी देना पड़ेगा. दैट मैकेनिज्म दे हैव सेट इन कैलकुलेशन
So that I'm not going to read in detail because we have lost already a few minutes. Or that I'm sharing the screen. Now let us move further. So they have also gone for 234B changes. Explanation 1 they have modified. They also modified 234A calculation. But be careful, आपको जो additional tax चुकाना है, the additional tax has to be tax plus interest. उसके 25% और 50% depending upon when you are filing the updated return. Now there is one more provision they have proposed in this finance bill, and this is litigation management when appeal by revenue on identical question of law. Let me discuss orally instead of going in this. Let me take it a practical, small practical. There was already a provision. जैसे मान ले कि मेरा कोई question of law है वो गुजरात हाईकोर्ट में है और गुजरात हाईकोर्ट has already given me a favor. जैसे ATIA को लेकर है, ATIB को लेकर है, ठीक है, ऐसे कोई डिडक्शन है. अब आपको जानकारी है कि ATIA, ATIB सारे डिडक्शन नॉर्मली 10-10 साल तक मिलते हैं, कभी-कभी 5 साल तक मिलते हैं, ठीक है. तो इन सिचुएशन में मान लो कि मेरा जो पहला साल था वो डिस्प्यूट में गया, ट्रिब्यूनल में गया, फिर हाईकोर्ट में गया और हाईकोर्ट के अंदर जो इंटरप्रिटेशन था, हाईकोर्ट हैज गिवन मी अ फेवर. बट ऑब्वियस है मेरी सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर ये सारी मैटर मेरी लिटिगेशन में है और कुछ मैटर ट्रिब्यूनल तक है, कुछ मैटर कमिश्नर अपील तक है. तो मान लो कि ATIA जो मैं क्लेम कर रहा था उसमें जो 5वां साल था उसमें मेरी मैटर कमिश्नर अपील के सामने आई और जो पहला साल था वो ऑलरेडी हाई कोर्ट में मुझे फेवर मिल चुकी है उस इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ पे, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पे. अब कमिश्नर अपील के सामने 5वां साल CIT अपील में कमिश्नर अपील के पास हियरिंग आया. तो बड़ा ऑब्वियस है मैं रिक्वेस्ट करूंगा कमिश्नर अपील साहब को कि गुजरात हाईकोर्ट का जजमेंट है एंड जुरिसडिक्शनल हाईकोर्ट जजमेंट इज बाइंडिंग ऑन यू, देयरफॉर कमिश्नर अपील विल गिव मी अ फेवर. तो कमिश्नर अपील ने मुझे फेवर दिया 5वें साल के लिए, ठीक है. अब कमिश्नर अपील की फेवर आने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करना चाहता है. तो ऑलरेडी एक प्रोविजन था ऐसी सिचुएशन में that income tax department should not file an appeal to tribunal. Rather, income tax department should write a letter to tribunal that this matter has been decided by Gujarat High Court in favor of SSC and we have already challenged the Gujarat High Court before Supreme Court and that matter is pending. तो जब तक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट नहीं आती है तब तक हम 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां जितने भी आगे ऑर्डर आने वाले हैं उसके अंदर हम ट्रिब्यूनल में अपील फाइल नहीं करेंगे. अगर सुप्रीम कोर्ट SSC की फेवर करती है तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस सालों के लिए ट्रिब्यूनल जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इज फाइनल. अगर सुप्रीम कोर्ट फेवर नहीं कर रही है SSC को और गुजरात हाईकोर्ट का जजमेंट रिवर्स कर रही है तो ऐसी सिचुएशन में फिर जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आएगी वो जब प्रिंसिपल कमिश्नर को उसकी कॉपी मिलेगी उसके 60 दिन के अंदर दे विल सबमिट द अपील टू ट्रिब्यूनल फॉर 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो दिस वाज अ वेरी लॉजिकल प्रोविजन बट दिस प्रोविजन इज फॉर द सेम SSC. यानी मेरे केस चल रहे हैं और मेरे केस में हाई कोर्ट ने फेवर दिया है, मेरी मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है रेवेन्यू की, ठीक है. उस सिचुएशन में ही ये सेक्शन एप्लीकेबल होती थी. अब उन्होंने क्या कर दिया, बदलाव क्या लाया है? बदलाव सिर्फ छोटा सा है. बदलाव सिर्फ इतना ही लाया है उन्होंने कि अगर मेरी मैटर है ठीक है लेकिन मेरी मैटर में गुजरात हाईकोर्ट ने फेवर दिया है एंड सेम आइडेंटिकल क्वेश्चन ऑफ लॉ इज देयर इन केस ऑफ रमेश भाई ठक्कर और इन केस ऑफ रोमिल शाह एंड CIT appeal has given favor. So for Romil Shah matter or Ramesh Thakkar matter also they will not file an appeal to tribunal till Supreme Court will decide the matter subject to the consent of Romil Shah and Ramesh Thakkar. तो दिस वाज अ गुड मूव जिससे क्या होगा कि ट्रिब्यूनल में अननेसेसरली पेंडिंग अपील बढ़ेगी नहीं. दैट वाज द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रोड्यूसिंग दिस प्रोविजन. नाउ आई एम गोइंग फर्दर फॉर नेक्स्ट प्रपोजल इन द फाइनेंस बिल. दिस प्रपोजल इज 245A में. अगर आपको ध्यान है तो लास्ट बजट में ये सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया था कि जहां टोटल इनकम 50 लाख से कम है, आई रिपीट, जहां टोटल इनकम 50 लाख से नॉट एक्सीडिंग 50 लाख है तो उस सिचुएशन में अगर डिस्प्यूट है बिफोर द एडिशन इज बीइंग मेड देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी, DRC. जैसे इंटरनेशनल टैक्सेशन को लेकर भी DRC कंसेप्ट है, ऐसा उन्होंने DRC कमेटी, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था. अभी उसकी स्कीम तो मेरे ध्यान में आई नहीं है DRC की जो उन्होंने लास्ट बजट में इंट्रोड्यूस की थी और
it was approved in the Finance Act. अब उस DRC में मान लो DRC ने सजेस्ट किया, DRC is a collegium of few commissioners, और DRC ने सजेस्ट किया कि ये एडिशन नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो या एडिशन को इतना ही करना चाहिए, तो उसकी उस DRC के ऑर्डर की इफेक्ट देनी पड़े, तो दैट दे फेल टू राइट दैट DRC ऑर्डर शैल बी गिवन इफेक्ट बाय द असेसिंग ऑफिसर, वो लिखना वो भूल गए थे, इसलिए उन्होंने एक अमेंडमेंट किया है कि नया सबसेक्शन इंट्रोड्यूस किया टू एनेबल एओ टू पास द ऑर्डर गिविंग इफेक्ट टू द रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट बाय द DRC। तो DRC ने जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन किया और जो डायरेक्शन दी, बट ऑब्वियसली एओ को अकॉर्डिंगली आपकी इनकम क्या करनी है, कम करनी है, वो एडिशन को डिलीट करना है, लेकिन एओ को पावर ही नहीं दिए थे और एओ को पावर देना ही भूल गए थे। तो नाउ दे हैव जस्ट क्लैरिफाइड बाय वे ऑफ ए न्यू सबसेक्शन कि एओ का पावर है, DRC जो बताएगा अकॉर्डिंगली वो ऑर्डर पास करेगा, तो which is natural and logical, but it was they failed to write. Now next, very important, clarification regarding treatment of cess and surcharge. Now they have given various judgments. I am not going in citation. Now this has lost academic importance now, those citation, because of the proposed amendment. हमें जानकारी है कि सेक्शन 40 क्लोज नंबर A स्मॉल a, उसमें प्रोविजन है कि अगर हम इनकम टैक्स चुकाते हैं तो इनकम टैक्स इज नॉट ए डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर, तो वी नो इनकम टैक्स इज नॉट ए डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर। नाउ इन दैट केस द वर्ड वाज रिटन इनकम टैक्स, दैट्स व्हाई द मैटर वाज सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन बिफोर द हाई कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स, और मेजॉरिटी केसेस हाई कोर्ट्स हैव हेल्ड, इंक्लूडिंग राजस्थान हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, they held that income tax only can be disallowed, and if it is an education cess, then education cess is not an income tax. जहां तक सरचार्ज का सवाल है, सरचार्ज is a part of income tax if you refer the definition of tax under section 2. section 2 में जो टैक्स की डेफिनेशन बताई गई है उसमें लिखा है टैक्स इंक्लूड सरचार्ज, बट उन्होंने ऐसा लिखा है टैक्स इंक्लूड एजुकेशन सेस। इसलिए हाईकोर्ट का ये व्यू था कि जहां तक एजुकेशन सेस का सवाल है, I am talking about education cess on income tax, जो हम चुका रहे हैं 4%. So that education cess is not an income tax, and that's why it cannot be disallowed while computing income under the head business profession. So education cess cannot be disallowed. That was the view taken by various high courts. However, the contrary ruling was given by tribunal considering Supreme Court judgment, and they said that cess is also an additional surcharge, and when income tax includes surcharge, and that's why surcharge include additional surcharge. That was the interpretation done by the tribunal. तो इसको लेकर फाइनेंस बिल में उन्होंने लिखा है, बहुत सारा डिटेल में डिस्कशन किया है इसको लेकर, और उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि जब भी इनकम टैक्स डिसअलाउ करने की बात आ रही है बिजनेस प्रोफेशन हेड के अंतर्गत, then education cess and surcharge will also going to be disallowed. So now this litigation they put to an end by way of amendment. So I am reading that they have given a long discussion. I have shared with the summary, and they have given reason also. इसलिए उन्होंने क्लैरिफाई किया है, क्या क्लैरिफाई किया है? It is proposed to include in explanation retrospectively to clarify that for the purpose of this subclause, tax includes surcharge and cess by what name called. An amendment is made retrospectively to make it clear the position irrespective of our own circular. Actually उनका ही सर्कुलर था कि tax does not include cess. अब वही बोल रहे हैं कि irrespective of our circular, अब हम फाइनेंस बिल के जरिए हम अमेंडमेंट ला रहे हैं, and now tax include education cess and surcharge. So now you should disallow education cess and surcharge. This is a retrospective amendment AY 56. आगे चलते हैं. This is very interesting. I am sharing orally business reorganization. It's a very good move. Business organization को लेकर मारुति सुजुकी का सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था, बहुत इंटरेस्टिंग जजमेंट था. Normally amalgamation takes place, or we can say conversion takes place, conversion of LLP into private limited company into LLP. तो ऐसी सिचुएशन में जब कन्वर्जन होता है और डीमर्जर होता है, take it various situations of business reorganization. So during business reorganization, more particularly amalgamation, demerger or this kind of conversion,
earlier entity may not be in existence, more particularly amalgamation. जैसे amalgamation होगा तो amalgamating company जो है that would not be in existence in certain situation. Same way conversion of unlisted company into LLP. Then now unlisted company will not be in existence and now LLP will remain in existence. और इन सिचुएशन में हुआ क्या, खास करके एमालगमेशन को लेकर, कि असेसिंग ऑफिसर ने असेसमेंट किया एमालगमेटिंग कंपनी जो बंद हो चुकी है. तो असेसिंग ऑफिसर ने नोटिस दिया एमालगमेटिंग कंपनी को और असेसमेंट ऑर्डर पास किया एमालगमेटिंग कंपनी के नाम पे, जबकि एक्चुअल में तो एमालगमेशन हो चुका है. जैसे लेट अस टेक इट एन एग्जांपल ऑफ कंपनी ए एंड कंपनी बी. नाउ कंपनी ए गॉट एमालगमेटेड विद कंपनी बी. तो नाउ कंपनी ए इज नो मोर इन एग्जिस्टेंस. कंपनी ए इज नो मोर इन एग्जिस्टेंस. अब इस सिचुएशन में असेसिंग ऑफिसर ने कंपनी ए को स्क्रूटिनी का नोटिस दिया या 147 का नोटिस दिया और कंपनी ए का ऑर्डर भी पास कर दिया. तो मैटर वेंट टू सुप्रीम कोर्ट. An argument was done before Supreme Court that company A is now no more an existing entity. It is not an existing entity. And if there is a non-existent person, how can you make an assessment? And Supreme Court had given favor to the taxpayer that any assessment made on entity which is not in existence, like we are all aware, any person who has expired, in that case, if assessment is being done in case of deceased person, then that is nothing but what? Null and void, because he is not in existence. So same concept Supreme Court followed in case of Maruti Suzuki's case. Now they have corrected this. They say that that was not the intention. और उन्होंने क्या लिखा है amendment? I am sharing the amendment. Look at the amendment. I shared the background of the purpose of amendment. तो अब उन्होंने clarify कर दिया. It is proposed to insert a new subsection to provide that any assessment or proceeding pending or completed on predecessor in the event of business reorganization shall be deemed to have been made on successor. तो मैंने जो आपको एग्जांपल दिया कि ए गॉट मर्ज विद बी और असेसिंग ऑफिसर ने गलती से कंपनी ए को लेकर असेसमेंट कंप्लीट कर दिया. अब ए एग्जिस्टिंग एंटिटी नहीं है, कंपनी ए लिमिटेड. तो लॉ क्या कहता है, नया अमेंडमेंट क्या कहता है, कोई बात नहीं, एओ ने असेसमेंट कर दिया ए लिमिटेड का, तो ए लिमिटेड का जो असेसमेंट हुआ, इट इज डीम्ड दैट इट हैज बीन मेड ऑन व्हाट? बी लिमिटेड. That's why B Limited has to now pay tax. So this is liability in special cases. Section 170 में उन्होंने change ला दिया. So this is very as such. It is AO may not be even sometimes aware that business reorganization had taken place. In many of the cases, AO is aware, but still AO had not dropped the proceeding. But it is very difficult for the AO to go back for those years for the existing company. और amalgamation को लेकर हमें भी जानकारी है कि जब एमालगमेशन होता है तो एनसीएलटी हाई कोर्ट में कमिंग टू पिक्चर, तो इट मे टेक सम टाइम, इट मे टेक सम इयर्स आल्सो, समटाइम्स डिसेंटिंग क्रेडिटर्स आर आल्सो देयर, एंड दैट्स व्हाई द इंटरवेंशन मे बी देयर ऑफ द अथॉरिटी अंडर द कंपनी लॉ, एंड इट मे टेक 3-4 years 5 years टू कंप्लीट द एमालगमेशन. तो ये सारा ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक दूसरा भी एक बढ़िया अमेंडमेंट किया विच इज इन फेवर ऑफ टैक्स पेयर, कि मान लो कि एमालगमेशन का ऑर्डर आया आज और उन्होंने लिखा कि इफेक्टिव डेट इज 3 years back. Effective date is what? 3 years back और amalgamation का order आया आज. तो can amalgamated company can modify its return of last 3 years? The answer is yes. They said that amalgamated company can modify the return also after the amalgamation order is being passed by the court. So that was a very good move, that you can modify a return depending upon your complete merger of accounts. So that they have clarified. They can file modified returns for the period between date of effective order and date of final order passed by the competent authority. इसके अलावा एक और भी उन्होंने चेंज किया है इसको लेकर. I think this is not much relevant for all our practicing at Gandhinagar. I am not right now investing time. I am going next. This is not a good move. This is also against the taxpayer. Section 14 है. सेक्शन 14A को लेकर आपको जानकारी है कि अगर आई हैव अर्न्ड एग्जेम्प्ट इनकम और वी कैन से इनकम विच इज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, ठीक है. इफ आई हैव अर्न्ड एग्जेम्प्ट इनकम, इफ आई हैव इनकर्ड एनी एक्सपेंडिचर फॉर अर्निंग सच एग्जेम्प्ट इनकम, then that expenditure is not allowed as deduction under section 14A. And there are certain, all other provisions are also there, that if that expenditure, SSC claims that no expenditure has been incurred, or SSC, whatever SSC put forward the claim but AO found not satisfactory, then in that case rule 8D can also be invoked. That all we are aware.
अब उसको लेकर बहुत सारे जजमेंट थे कोर्ट के कि मैंने ड्यूरिंग द ईयर कोई एग्जेम्प्ट इनकम कमाया ही नहीं, आई हैव नॉट अर्नड ए सिंगल एग्जेम्प्ट इनकम। अर्लियर डिविडेंड वाज एग्जेम्प्ट, नाउ इट इज टैक्सेबल। बट अगर अर्लियर केसेस में हम ध्यान दें तो डिविडेंड इनकम मैंने कमाया ही नहीं, पूरे साल में मेरी एग्जेम्प्ट इनकम 0 है। I have not earned a single exempt income. So can disallowance be made? Then almost the unanimous view was there of various courts and tribunals. If income is not earned, then there cannot be a disallowance under 14A. Despite of CBT circular क्या कहती थी कि भले ही आपने इनकम नहीं कमाया तो भी 14A लागू होगी और आपके एक्सपेंडिचर डिसअलाउ होगी, ठीक है। फिर भी हाई कोर्ट्स एंड I think there was a Supreme Court judgment also on that it cannot be disallowed if no income is earned which is exempt during the previous year. अब उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ बजट मेमोरेंडम में। उनका ये कहना है कि मान लो किसी ने, जस्ट एग्जाम्पल दिया है, मान लो किसी ने 5 लाख रुपए जो इनकम कमाई है वो टैक्सेबल है, कोई भी एग्जेम्प्ट इनकम कमाई नहीं, और 5 लाख टैक्सेबल इनकम कमाने के वक्त उनका खर्चा हुआ है 1.5 लाख रुपए एक्सपेंडिचर, ठीक है। और ये 1.5 लाख में 20,000 रुपए का जो खर्चा है दैट इज टुवर्ड्स एग्जेम्प्ट इनकम, दो एग्जेम्प्ट इनकम इज नॉट अर्न्ड, बट दैट 20,000 इज एन एक्सपेंस डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल टू व्हिच इनकम, एग्जेम्प्ट इनकम, इफ इट वुड हैव बीन अर्न्ड। तो उनका ये कहना है ये तो गलत बात होगी, 5 लाख आपकी ग्रॉस रिसिप्ट है, आप 1.5 लाख पूरा क्लेम कर रहे हैं, जबकि 20,000 रुपए तो एक्सपेंडिचर कौन से किसके सामने थे, एग्जेम्प्ट इनकम के सामने थे। भले आपने एग्जेम्प्ट इनकम नहीं कमाया लेकिन खर्चा तो किसके लिए था। जैसे मान लो कि मैंने शेयर में इन्वेस्ट किया, उन दिनों की बात कर रहा हूं जब डिविडेंड एग्जेम्प्ट था, और शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए मैंने बोरो किया और इसकी इंटरेस्ट कॉस्ट है 20,000 रुपए। तो आइडियली दे आर राइट दैट 20,000 शुड नॉट बी अलाउड अगेंस्ट माय टैक्सेबल इनकम बिकॉज दिस एक्सपेंडिचर इज पर्टेनिंग टू द इनकम व्हिच आई कुड हैव अर्न्ड व्हिच वुड बी एन एग्जेम्प्ट इनकम। तो उन्होंने अब क्लैरिफाई कर दिया है, 14A उन्होंने अमेंड कर दिया और 14A में उन्होंने बताया, आई एम रीडिंग द रिलेवेंट पार्ट, इन ऑर्डर टू मेक द इंटेंशन clear and make it free from any misinterpretation. Now they inserted explanation and they clarified that notwithstanding anything contrary contained in this act, provision of this section shall apply and deemed to have always been applied where exempt income has not accrued or risen or has not received during the previous year. यानी 14 लागू होगी भले ही आपको exempt income नहीं मिली। Thank God this amendment is not retrospective. ये retrospective amendment नहीं है, that is a good move that you should take it. Now next, section 37. Let me share the background of section 37 first. 37 को लेकर बहुत पुराने जजमेंट है, खास करके we are aware of section 37 explanation to the section 37(1). If you have incurred any expenditure which is prohibited by law or which is an offense, then that expenditure is inadmissible under section 37 of the Income Tax Act. Now, उसको लेकर तुषार भाई ने वो रिक्वेस्ट करो ना कि आवाज की गई पाना फिर वाला कहीं का, तो शायद कोई मैटर वाची ना लगे। Now, हेलो, 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 શું બંધ કરું? હા, will be tomorrow be mute કરવું પડશે. Are so I was talking about section 37 which is an offense which is prohibited by law. Now, very interestingly, there was a judgment શું બંધ? of a Punjab and Haryana High Court. Even review petition was also rejected. More particularly pharma companies, pharma and this pathology. In this case, pharma and pathology concerns, they have to, there is generally custom that they give freebies, free benefits to the doctors for pursuing doctors to write these specific drugs whenever they recommend to the, they can recommend to the patients, or they can recommend a particular patient to a particular laboratory for test. And for that, free benefits are being given or white goods are being given like washing machine, air conditioner, etc. Now, these all expenditure they were claiming as deduction, pharma company. Now, if you read
medical etiquette and ethics rules, then it was written that medical professionals cannot accept this kind of freebies and benefits, etc. That is the ethics and etiquette regulation, medical council regulations are there. तो इसको लेकर assessing officer का ये कहना था कि you have committed a violation. Pharma company had committed a violation. And that's why this relevant expenditure incurred providing free benefits to doctors, these expenditures shall be disallowed under section 37 in view of the explanation, because it is prohibited by regulations, and regulation falls under the law prevailing in this country. इसको लेकर मैटर हाई कोर्ट में भी गई, सीबीटी का भी सर्कुलर था 2012 का. Majority high courts have initially high court had said it will be disallowed, but some high court says no, it can be allowed. The reason is that this restriction is not on pharma company. That was one of the main aspect. The restriction is on doctors. Restriction is not on pharma companies. So pharma company can always give free benefits. There is no law in the country that will prevent pharma company that not to induce doctors. ऐसा कोई law है नहीं. That's why the idea is that it cannot be disallowed so far as pharma companies or pathology laboratories are concerned. That was the view taken by some of the courts and some of the tribunals as well. अब उनका ये कहना था कि भी intention was very clear कि अगर आप कहीं भी law violate कर रहे हैं और उसको लेकर कोई payment हो रहा है, तो that payment should be allowed as deduction while computing business income. तो अब उन्होंने थोड़ा उस explanation को modify किया. I'm reading that modified explanation in a proposed finance bill. Let us pay attention. तो इन शॉर्ट ये सारी जो कंट्रोवर्सीज चल रही थी लिटिगेशन की, now it will be put to an end because of this proposal. I am reading, they have said that this explanation 1 we are modifying and we are covering 3 points. Pay attention. Explanation shall include and deemed to have always included expenditure incurred by the SLC. पहला तो हमें मालूम था ही, for any purpose which is an offence or which is prohibited by law. For the time in force in India or even outside India, that is very, very important. So they say which is prohibited by law in India or outside India. If that expenditure is there, then that will not be allowed as reduction. Now they have written number 2. Any benefit or perk which you have provided to a person, and acceptance of such benefit or perk by that person is in violation of law. जैसे मैंने बताया, doctor cannot accept these free benefits. Doctor cannot accept these white goods like washing machine, air conditioner, because of the medical regulations, etiquette and ethics rules and regulations 2002. तो अगर acceptance is a violation for that person, ठीक है, that they have said governing the conduct of such person. अगर ऐसा वायलेशन उस पर्सन के लिए, भले फार्मा के लिए वायलेशन नहीं है, लेकिन जो रिसीव कर रहा है बेनिफिट उसके लिए वायलेशन है, तो भी फार्मा कंपनी को एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा. एंड दे आल्सो क्लैरिफाइड कि अगर आपने कोई कंपाउंडिंग किया है कोई ऑफेंस का और कंपाउंडिंग चार्जेस चुकाया है, तो दैट कंपाउंडिंग चार्जेस इज गोइंग टू बी डिसअलाउड, यू आर डेबिटेड टू P&L. So that they have clarified. Next is section 43B. A small amendment is there. Issue यहाँ क्या था कि जो लोन थी बैंक की, that was converted into debenture. So we know already this provision. Okay, whenever the unpaid loan because of restructuring is converted into new loan along with unpaid interest, then that would not be taken as actual payment for the purpose of 43B. It may be taken as constructive payment, but it cannot be considered as actual payment. तो उसका डिडक्शन हमें अभी नहीं मिलेगा. उसका डिडक्शन कब मिलेगा, जो नई लोन है, रिस्ट्रक्चर्ड लोन है, बैंक ने जो रिस्ट्रक्चर की है, जब उसको हम चुकाएंगे तब हमें 43B में डिडक्शन मिलेगा. एट द टाइम ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग वी विल नॉट गेट द डिडक्शन under 43B of unpaid interest. Similarly, in certain situations, there was an unpaid loan of a bank or financial institution which got converted into debenture. तो उसको लेकर कुछ कोर्ट ने ऐसा बताया कि when it has been converted to now debenture, so it is not a case of restructuring of loan. It is a case of now altogether a new instrument, and that's why 43B जो उन्होंने प्रोवाइजो लिखे थे, they cannot be made applicable, and simply on conversion SSC can claim deduction of unpaid interest. These are the judgments of few courts. तो उसको ओवररूल करने के लिए उन्होंने अमेंडमेंट कर दिया और अमेंडमेंट लिख दिया
कि अगर आप अनपेड लोन को डिबेंचर में कन्वर्ट करते हैं, then it is still taken as not actually paid, and that's why interest on such unpaid loan will not be allowed as deduction. You can claim deduction only when debenture is being actually repaid. Only in that event you can get the deduction. So that they have just made the amendment, slightest amendment in 43B. I'm just reading that interest payable under clause D, DA 43B into debenture or any other instrument by which liability to pay is deferred at a future date, it would not be deemed to have been actually paid. फिर आगे देखें हम, consequence for failure to collect or deduct tax and computation of interest. I think this is just a clarificatory amendment. As such, there is no change in 201 and 1A. सिर्फ उन्होंने इतना clarify कर दिया है क्योंकि क्या था 201 जो है, अगर SSC had failed to deduct tax at source or after deduction he failed to deposit tax, ठीक है 201 में, then he will be treated as SSC in default, and AO will pass an order. AO will pass an order that he is an SSC in default and he has to pay such tax. Such tax means TDS. तो ऐसे कुछ भी interpretation हुए कि AO can only cover tax. AO cannot recover interest under subsection 1A. So that is not fair, because when AO is passing order that you are SSC in default for TDS amount of rupees 1 lakh, and AO is passing order, because we know this order can be passed up to 7 assessment year. अब AO मान लो 6 साल के बाद ये ऑर्डर पास कर रहा है और 6 साल के बाद उसने टैक्स TDS की अमाउंट और इंटरेस्ट को रिकवर किया, तो आर्गुमेंट वाज मेड ओनली ही कैन रिकवर टैक्स बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज एम्प्लॉयड इन 201. तो उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि अगर AO ने ऑर्डर पास किया एंड जो ऑर्डर है उसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, देन यू हैव टू पे इंटरेस्ट एज वेल. दैट इज जस्ट ए क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट इन 201 एज वेल एज 206C TCS को लेकर. तो आई एम नॉट रीडिंग दैट पार्ट. तो आप देख रहे हैं कि बजट स्पीच में सारा कुछ डिस्कशन हुआ ही नहीं, यानी दे हैव जस्ट शेयर्ड द लुक्रेटिव प्रपोजल्स व्हिच आर इन द फेवर ऑफ टैक्स पेयर, जैसे ये वाली हैं. सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर मेजर उन्होंने डिस्कस किया बजट स्पीच में. हमें जानकारी है कि 2019 में 115 BA भी इंट्रोड्यूस किया गया था. अगर आप नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोल रहे हैं सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस अंडर 115 BA भी, तो आपके लिए कंसेशनल टैक्स रेट रिजीम 15%. अब उसमें कंडीशन ये थी कि आपको मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट करना था, आपको मैन्युफैक्चरिंग कमेंस करना था 2023 के पहले. You have to begin your manufacturing operations on or before 31st March 2023. लेकिन कोविड को लेकर हो सकता है कि प्रोजेक्ट बहुत डिले हुए हैं, इसलिए उन्होंने ये डेट बढ़ा के 31st March 23 को लेकर बढ़ा के 24 बताई. दैट वी ऑल आर अवेयर इन बजट स्पीच, दोज हु हैव सीन बजट स्पीच. सिमिलरली एलिजिबल स्टार्टअप, उसका जो डिडक्शन है 80 IAC में है, वहां भी आप नई कंपनी अगर खोलते हैं 2016 से 2022 तक, ठीक है, तो आप एलिजिबल स्टार्टअप कहलाएंगे सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन दैट यू आर होल्डिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम IBC, इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन, एंड सब्जेक्ट टू योर टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 100 करोड़. तो आपको 3 साल का डिडक्शन मिलता था. 3 years out of 10 assessment years you can claim it. Deduction 100% profit is deductible under 80 IAC. अब उन्होंने ये स्टार्टअप का प्रोग्रेस देखते हुए और स्टार्टअप में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है इंडिया का, तो उन्होंने डिसाइड किया है कि ये सेक्शन को 1 साल और बढ़ावा दिया जाए बिकॉज ऑफ कोविड. तो नाउ स्टार्टअप बेनिफिट स्टिल कैन बी डिराइव्ड इफ यू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी बिफोर 31st March 23. तो दिस इज ऑल्सो अ गुड मूव. लुकिंग टू द कोविड दे हैव मेड दिस अमेंडमेंट. नाउ नेक्स्ट अमेंडमेंट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी. कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स लगता है 115JC. ऐसे AMT is applicable to firm also, sorry LLP also, and cooperative society और those who have claimed special deduction, those who have claimed 35AD, सबको AMT लगता है ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स. ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स का रेट है 18.5%, जबकि मैट का रेट उन्होंने 2019 में ही घटा दिया था और 15% कर दिया था. तो उनका यह कहना है कि ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं विच आर कॉम्पिटिंग विद द कॉर्पोरेट्स, तो उनको बेचारे को 3.5% AMT ज्यादा चुकाना पड़ रहा है. इसलिए लेवल प्लेइंग फील्ड और पैरिटी लाने के लिए हम ये अमेंडमेंट ला रहे हैं और AMT हम घटा रहे हैं 18.5% से 15%. अब मजे की बात यह है
कि AMT is applicable, alternate minimum tax is applicable to LLP also. तो ये amendment सिर्फ cooperative society के लिए ही किया है. This amendment is not applicable to LLP. यानी LLP को AMT चुकाना 18.5%. तो उनके लिए कोई level playing field की बात ही नहीं. It is also a corporate. LLP is also now being monitored by the Ministry of Company Affairs. So ideally, their tax rate should also be reduced from 30% to 22%, like company. But no, there is no concession for LLP. The concession is only for cooperative society. It is to be kept in mind. Especially a comment from my side on this proposal. IFSC I am not sharing right now because it is not applicable to all of us. खास करके गांधीनगर में जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है उसको लेकर. फिर एनपीएस को लेकर आई एम शेयरिंग दी प्रपोजल ओरली. एनपीएस को लेकर एक रिडक्शन 80 और खास करके जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है दैट विल बी अलाउड एज रिडक्शन. एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को लेकर रूल ये है कि एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो मान लो एम्प्लॉयर इज कंट्रीब्यूटिंग समवॉट 12% फॉर एग्जाम्पल, then you cannot claim more than 10% of salary as reduction under 80 CCD with regard to employer contribution. और जहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं उनके लिए 14% they can claim it. 14% of salary they can claim it as reduction under 80 CCD. But ध्यान दें, this 14% was only for central government employee. It was not for state government employee. So this amendment is relevant for employee in Gandhinagar because many of you might be handling the returns of employee. तो उन्होंने अब क्या कर दिया कि ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट को उन्होंने बोल दिया कि आप न्यू पेंशन स्कीम जो है एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट, एनपीएस में आप स्टेट गवर्नमेंट कैन आल्सो कंट्रीब्यूट 14% अप टू 14% एज पर देयर चॉइस. अब स्टेट गवर्नमेंट 14% कंट्रीब्यूट करना चाहती है, लेकिन दिक्कत क्या हो रही है कि एम्प्लॉई स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई वाज गेटिंग डिडक्शन ओनली अप टू 10%, तो बाकी 4% पे टैक्स देना पड़ रहा है. दैट्स व्हाई दे मेड एन अमेंडमेंट कि नाउ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई कैन आल्सो क्लेम 80 CCD with regard to employer contribution up to 14% of salary. So this was a welcome move for state government employee. Now next I am sharing next proposal of finance bill. This is ATDD disabled person को लेकर हमें जानकारी है कि either policy has been taken or some expenditure is incurred on the medical treatment of person suffering from disability, then a fixed reduction is allowed under ATDD. ठीक है. अब उसको लेकर जहां तक जो पॉलिसी है, तो वो जो स्कीम थी LIC और अदर इंश्योरेंस कंपनी की स्कीम, उसमें उनका जो प्रपोजल ये था, स्कीम में लॉ में ऐसा लिखा है इनकम टैक्स एक्ट में कि अगर जिसके पर वो डिपेंडेंट है वो चल बसा, उसकी डेथ होगी, उसके डेथ के बाद डिसेबल पर्सन को पैसे मिले, ऐसी स्कीम थी. द आइडिया इज दैट पर्सन ऑन हुम ही इज डिपेंडेंट, दैट पर्सन हु इज ऑन हुम ही इज डिपेंडेंट इज नो मोर. जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि I have got a person, my family member, who is dependent on me and he is suffering from disability and he is dependent on me on his livelihood. और अगर मैं नहीं रहता हूँ तो how he will be taken care of. तो I will take up a special policy. उस पॉलिसी मेरी लाइफ पे रहेगी और अगर मैं नहीं रहता हूँ तो मेरे मरने के बाद वो डिसेबल को लमसम अमाउंट या एन्युटी मिल जाएगी. बट वो पैसा कब मिलता था? आफ्टर माई डेथ. अब दिक्कत क्या है? I may have reached to age of 60. I stop earning. ठीक है, I am now a senior citizen. I have to maintain myself as well as the person who is dependent on me and who is suffering from disability. और मुझे पैसों की जरूरत है. किसके लिए? डिसेबल पर्सन के लिए. और कभी कभी मान लो बीच में भी डिसेबल पर्सन को कोई ट्रीटमेंट करवानी है, you need a lump sum amount. तो इस सिचुएशन में there was a hardship because ATDD will not be allowed for this kind of policies. ATDD will be allowed only, payment would be done when either lump sum amount or annuity only after my death. ऐसा एक्ट में लिखा था. अदरवाइज ATDD will not be allowed. बाकी कोई स्कीम है डिसेबल पर्सन को लेकर तो उसको लेकर ATDD नहीं मिलेगा. तो नाउ दे हैव अंडरस्टूड बिकॉज ऑफ कमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोई मैटर के अंदर सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया होगा. सुप्रीम कोर्ट सेड दिस इज समथिंग अनड्यू हार्डशिप टू बोथ द पर्सन हु इज मेंटेनिंग एंड पर्सन हु इज डिसेबल. So ideally they said that remark they have made it, the central government should look into this whenever they will carry out the changes in the income tax act. And now they have made the change accordingly. Number one. And number two, मान लो मेरी डेथ नहीं हुई और कुछ lump sum amount withdraw किया मैंने डिसेबल पर्सन के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए. तो in that case that lump sum amount would not be taxable in my hand. That they have clarified. That lump sum amount which I withdraw, that would not be taxable. There was a special subsection they have introduced. So this was a wonderful move for ATDD. So now
some more policies can be covered in ETT. Now, another is COVID-19 expenditure incurred on medical treatment or amount is received on account of death. This is very, very relevant for employees as well as general taxpayers. One amendment they made it in section 17(2). Perquisite में उन्होंने amendment किया है और उन्होंने clarify किया है कि any sum paid by employer in respect of expenditure incurred by employee on medical treatment, either his own treatment or treatment of family member because of COVID, ठीक है, this would not be treated as perquisite. तो अगर एम्प्लॉयर आपको कोविड को लेकर आपके लिए या आपके फैमिली मेंबर के लिए, फैमिली मेंबर हैज बीन डिफाइंड अंडर द एक्ट, उनकी ट्रीटमेंट के लिए अगर उसने कुछ पेमेंट दिया है, एक्सपेंडिचर किया है एम्प्लॉयर ने आपके बिहाफ पे, देन इट वुड नॉट बी ट्रीटेड एज परक्यूसिट. एंड दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इन सेक्शन 56 कहीं कहीं देखें तो गवर्नमेंट आल्सो हैड गिवन रिलीफ फॉर कोविड डेथ. Some payment has been given. More particularly, municipal corporations have made payment for medical treatment of the person suffering from COVID. So now, would it be treated as gift? Because section 56 क्या कहती है? Section 56 ideally देखने जाए तो there is no word called gift. It simply says sum of money received without consideration. It doesn't say that you have received gift. Gift तो हमने उसको नाम दे दिया है. सेक्शन 56 में कहीं गिफ्ट वर्ड है ही नहीं. Either sum of money or property is received without consideration. तो normally law says it is received without consideration. तो मान लो आपकी जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, that payment has been received by you, municipal corporation has paid that and decided to bear that payment, and they have given the payment to you. Or sometimes it may happen that you are in need of money and it was a lockdown. Your relative has helped you. Or third party, your friend has helped you. Forget relative, but your friend has helped you. और आपका मान लो कोविड का खर्चा हुआ 2 लाख रुपए और आपके फ्रेंड ने ये पेमेंट आपको दिया 2 लाख रुपए. तो you have received sum of money without consideration. But this sum of money you received for what? For medical treatment of COVID. इसलिए उन्होंने स्पेसिफिकली सेक्शन 56 में बदलाव लाया. क्या बदलाव लाया पढ़ते हैं. Pay attention on screen. Any sum of money received by individual from any person. Be careful. ये अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. एनी पर्सन, मे बी योर फ्रेंड, मे बी योर रिलेटिव, मे बी थर्ड पार्टी, और ये पेमेंट आपको मिला है क्यों? क्योंकि आपके खर्चे हुए हैं कोविड को लेकर. मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ योर मेडिकल ट्रीटमेंट और मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ योर फैमिली मेंबर, एंड यू रिसीव्ड मनी, देन दिस वुड नॉट बी ट्रीटेड एज योर इनकम. तो उसके ऊपर आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है. इसके अलावा सम ऑफ मनी इज रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर, बट व्हेन एट द टाइम ऑफ डेथ, either the received because of the family member or death of family member, or employer ने आपको कुछ पेमेंट दिया, or you might be receiving this amount from any other person, maybe from government or municipal corporations. तो उन्होंने लिखा है this would be not treated as income. जहां तक employer का सवाल है there is no limit. जहां तक other person का सवाल है limit is 10 lakh. But condition है this payment should be received within 12 months from the date of death of that person. तो अगर 12 महीने के अंदर आपके पास ये पेमेंट आता है on death of your family member from a third party up to 10 lakh, then it would not be treated as income. And if it is an employer who is giving, and that amount, so far as employee is concerned, there is no limit. It can be more than 10 lakh also. So this is what the amendment they carried out. फिर मैंने इसको डिस्कशन में नहीं लिया है, disinvestment of PSU. We are not right now concerned as a general class who is attending this, including me. Widening and deepening tax base. Now this is very very important. तो अब आपको समझ में आ रहा है कि जो बजट स्पीच दी गई थी, बजट स्पीच में उन्होंने वही प्रपोजल बताई, वो कोविड वाली, ये डेट हम एक्सटेंड कर रहे हैं, ये डेट एक्सटेंड कर रहे हैं, एग्जाम्पशन दे रहे हैं, बट दे हैव नॉट शेयर्ड एनीथिंग अबाउट एजुकेशन सेस इज गोइंग टू बी डिसअलाउड और 14A इज गोइंग टू बी रिगरस. ठीक है. तो उन्होंने सिर्फ जो बेनिफिशियल प्रोविजन थे थोड़े, जो पब्लिक का हार्ट जीतने के लिए, only they have been incorporated in budget speech. Now this is very very important, widening this tax base. So let us read that. 206 AB and CCA, already we are aware of this provision. ठीक है. तो 206 AB क्या है?
you have to pay higher rate, you have to deduct higher rate of tax. If specified person जो डिडक्टी है, अगर उसने पिछले 2 साल तक रिटर्न फाइल नहीं किया है और हर एक साल में उसका TDS TCS एग्रीगेट मिला के 50,000 से ऊपर है, तो ऐसे जो नॉन फाइलर्स हैं उनकी गवर्नमेंट ने यूटिलिटी डिक्लेयर की थी, उस यूटिलिटी को अगर आपको चेक करना है कि इज अ नॉन फाइलर, देन इन दैट केस यू हैव टू डिडक्ट हायर TDS that we are aware, double or 5%, whichever is higher, that we are already aware, double of the rate applicable and 5%. 206AB, similarly, there is a provision for TCS as well, of higher rate of TCS. अब उन्होंने उनके अंदर 2 बदलाव लाए हैं। पहला जो बदलाव है ये है कि जो नॉन फाइलर की डेफिनेशन थी वो उन्होंने चेंज कर दी, और जो 2 years जो टाइम स्पान था उसके बदले उन्होंने 1 year कर दिया। यानी अगर उसने लास्ट ईयर का ही रिटर्न फाइल नहीं किया जिसकी ड्यू डेट एक्सपायर हो चुकी है, दैट्स ऑल, और उसकी अगर TDS TCS एग्रीगेट मिला के 50,000 से ऊपर कट चुकी है, एंड ही इज अ नॉन फाइलर, कौन सी सेक्शन के अंतर्गत? लेट अस रीड, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक तरफ अपडेट रिटर्न का प्रोविजन है, वो कहता है आप 24 महीने तक रिटर्न फाइल कर पाएंगे। Return is written under section 1 of subsection 1 of 139, यानी ओरिजिनल रिटर्न उसने फाइल नहीं किया और उसकी TDS और TCS की अमाउंट मिलके 50,000 से ऊपर जा रही है, then in that case you have to deduct higher rate of TDS or TCS. This is number 1. The amendment is from 2 years they are reduced to 1 year. You can see who has not filed return of immediately preceding financial year. This is amendment number 1. Amendment number 2, this section was not applicable for this 192, 192A, 194B, BB, LBC and 194N. So this section is not applicable for यानी जो हायर रेट ऑफ TDS है वो सैलरी को लेकर या विनिंग फ्रॉम लॉटरी को लेकर या कुछ नॉन रेसिडेंट के पेमेंट्स है उसको लेकर, या हायर रेट ऑफ टैक्स TDS इज नॉट एप्लीकेबल 206AB। अब उन्होंने थोड़ा उसके अंदर बदलाव लाया है और 3 और सेक्शन जोड़ी है, दैट इज वेरी वेरी गुड मूव। 194 IA, IB एंड M जो है वो इंडिविजुअल HUF को अप्लाई होती है, IB भी इंडिविजुअल HUF को अप्लाई होती है, और IA इज TDS ऑन परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो उन्होंने अमेंडमेंट कर दिया है कि जहां तक इंडिविजुअल HUF का सवाल है, दे शुड नॉट डिडक्ट higher rate of TDS under this section for this section as well, क्योंकि अननेसली वो बेचारा कितना चेक करने जाएंगे कि वो जिनको वो पेमेंट करना चाहते हैं उसने रिटर्न फाइल किया कि नहीं किया। तो टू रिड्यूस एडिशनल बर्डन ऑन इंडिविजुअल HUF, 3 more sections were also added and 206AB will not apply. This is a good move. Now this is very very important, 194 IA amendment है। क्या amendment है? 194 IA we are all aware that whenever there is a purchase of property, then it is the buyer who has to deduct TDS at the rate of 1% if consideration exceeds 50 lakh rupee. I repeat what I have spoken word, consideration. Act में क्या लिखा है? Consideration exceeds 50 lakh rupee, तो buyer को TDS काटना है when he makes payment to a resident seller. अगर non-resident है, then section 195 will be applicable. So it is the duty of the purchaser to deduct tax at the rate of 1%, but wordings used are consideration exceeds 50 lakh rupee, and the word consideration has also been modified. It was, I think, Finance Act 2019. अब उनका ये कहना है कि नहीं, consideration was not the intention, क्योंकि सेक्शन 50C और सेक्शन 43CA जो सेलर है उसको तो 50C लागू होती है, 43C लागू होती है, इवन बायर को भी 56 एप्लीकेबल होती है। अगर उसने ये जो लिखा पढ़ी है दस्तावेज है, प्रॉपर्टी जो परचेज कर रहा है, वो उसने सर्कल रेट से या जंतरी रेट से कम किया है, तो जंतरी रेट है मान लो किसी प्रॉपर्टी का 1 करोड़ 20 लाख रुपए, और वो प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है, कंसिडरेशन चुका रहा है पेपर पे सिर्फ 80 लाख रुपए, तो ही इज डिडक्टिंग टैक्स ओनली ऑन 80 लाख रुपए, जबकि जो सेलर है उसको तो इनकम दिखानी है 1 करोड़ 20 लाख अंडर 50C, अगर वो कैपिटल गेन में दिखा रहा है, अगर वो बिजनेस पर्सन है, बिल्डर है, डेवलपर है, तो उसको दिखाना है सेक्शन 43CA के अंतर्गत।
तो in that situation they have to report income 1 crore 20 lakh और अब TDS काट रहे हैं 1% of consideration और consideration दिखाया 80 लाख रुपए. तो unfortunately they have written in this case that you should deduct TDS of 1% of stamp duty valuation. You can see I am reading the provision. In order to remove this inconsistency, it is provide that in case of transfer of involved property, TDS will be deducted at the rate of 1% of sum paid or credited to the resident or stamp duty value, whichever is higher. फिर उन्होंने क्लैरिफाई किया है. अब सवाल आएगा, एक सवाल आएगा, सर मैं कंसिडरेशन चुका रहा हूँ 80 लाख रुपए, सॉरी कंसेशन चुका रहा हूँ मैं 45 लाख रुपए और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 52 लाख रुपए, तो क्या करना है? तो विचेवर इज हायर लेना है. ठीक है, विचेवर इज हायर में कौन सा हायर है? 52 लाख, एंड 52 लाख एक्सीड्स व्हाट? लिमिट ऑफ 50 लाख. तो आपको टीडीएस काटना है 1% ऑफ 52 लाख. तो दैट आल्सो दे हैव क्लैरिफाइड. पे अटेंशन. इन केस कंसीडरेशन उल्टा क्लैरिफाई किया है. इन केस कंसीडरेशन एज वेल एज एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, अगर दोनों 50 लाख से कम है तो टीडीएस नहीं काटना. तो एग्जांपल मान लो कंसीडरेशन आपका है 40 लाख और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन है 45 लाख, तो आपको टीडीएस नहीं काटना है क्योंकि दोनों 50 लाख से क्या है? कम है. दैट दे हैव क्लैरिफाइड. नाउ व्हाट इज द lacuna in this proposed amendment? And I am hopeful that there would be a whenever the bill will be approved by the president, it will become act. एक्ट होने से पहले जब प्रेसिडेंट उसको अप्रूव करेंगे इस बिल को, उसके पहले एक चेंज जरूर आना है. एंड दैट आल्सो वी हैव रिप्रेजेंटेड टू द वेरियस एसोसिएशन जीएफटीसी एंड एटसेट्रा. यहाँ बदलाव क्या लाना पड़ेगा? क्योंकि ऑलरेडी 43C और 50C में एक लॉ है कि अगर आपका कोई डेट ऑफ एग्रीमेंट है, दस्तावेज आप आज कर रहे हैं लेकिन ऑलरेडी वो एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट, बानाखत आपने किया है, एग्रीमेंट फॉर सेल किया है आपने 3 साल पहले बिल्डर ने, और कंस्ट्रक्शन होना है 3 साल बाद, रजिस्ट्रेशन होना है 3 साल बाद. एंड इफ समथिंग हैज बीन पेड बाय फॉर एन अकाउंट पे चेक और ड्राफ्ट और ईसीएस और एनईएफटी, तो इन दैट केस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू शुड बी अडॉप्टेड ऑफ व्हिच डेट? ऑफ दैट डेट. ठीक है. तो आई थिंक आई हैव नॉट रेड इन डिटेल द सेक्शन whether they have given a proper reference of stamp duty value of that section or general meaning of stamp duty value. That we need to check it out. If that would not be there, then there is a need for special care to be taken. Otherwise, it would be an undue hardship on the part of seller. So this is a amendment under 194 IA. फिर हम आगे बढ़ रहे हैं TDS on benefit or perk of a business or profession. तो ऑलरेडी सेक्शन 28(4) है डॉक्टर्स के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, यानी प्रोफेशनल्स के लिए, सबके लिए, कि अगर आपको कोई बेनिफिट और पर्क मिल रहा है बिकॉज ऑफ योर बिजनेस और प्रोफेशन, देन इट वुड बी ट्रीटेड एज योर बिजनेस इनकम. ठीक है, लेकिन कोई दिखाता नहीं है. डॉक्टर को एयर कंडीशनर मिला, व्हाइट गुड्स मिले, कोई दिखाता नहीं, इनकम नहीं दिखाता है. सेम में अंबुजा सीमेंट की मेरी एजेंसी है और मुझे गोल्ड कॉइन मिले तो nobody declare as gold coin as income. Similarly, I have been given a foreign trip. Doctors have been given a foreign trip or some resort 5 days voucher. So they never declare this income. चार्टर्ड अकाउंट को बहुत कम चांस मिलता है, लेकिन कहीं कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करते हैं, फी लेनी बाकी है तो उसके सामने ये खरीदारी कर लेते हैं कभी कभी शोरूम से, उनका कोई कस्टमर हो, डिपेंडिंग अपॉन दी नीड ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट. लेकिन जनरली डॉक्टर्स में ऐसा देखा गया है कि दे गेट दिस वेरियस बेनिफिट्स. तो इसको लेकर उन्होंने ये अमेंडमेंट किया कि 28(4) तो थी कि दिस इज ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम, लेकिन उसके ऊपर टीडीएस का प्रोविजन नहीं था. इसलिए फार्मा कंपनी या सीमेंट कंपनी या बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स जो है वो डेबिट कर देते थे एक्सपेंडिचर. ऑन द अदर हैंड एसएससी हु इज द बेनिफिशियरी ऑफ दिस इनकम और दिस गुड्स एंड मर्चेंडाइज, he is not declaring income. तो उन्होंने अब TDS का प्रोविजन लगाया है. I am sharing the screen. Pay attention. So there is now new TDS. There is section 194R. 194R says that person responsible for providing this benefit or perk, ठीक है, to a resident
then they should ensure that tax must have been deducted at the rate of 10% of value of such benefit or power. So now it should be 10%. फिर उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि if it is in kind or if it is partly in cash and partly in kind and cash amount is not sufficient to meet the TDS amount. जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि it is fully in kind, air conditioner is given of worth रुपये 49,000, 50,000, let us take it. तो डॉक्टर साहब को 50,000 का एयर कंडीशन दिया, आप टीडीएस कैसे काटें इसके अंदर? एयर कंडीशन का कॉम्प्रेशन तो निकाल नहीं सकते हम लोग. तो इन दैट सिचुएशन व्हाट इज टू बी डन? तो दे सेड ओके, यू शुड एंश्योर दैट अदर पार्टी हैड डिपॉजिटेड टैक्स. जैसे नहीं विनिंग फ्रॉम लॉटरी में ऐसा प्रोविजन है कि मान लो किसी को कार मिली, प्राइज मिली कार की, तो आपको क्या करना है? कार देने से पहले अगर आप टीडीएस में नहीं काट सकते हैं इसके अंदर, तो आप क्या करें? सामने वाले को बोले कि वो गवर्नमेंट में 30% टैक्स जमा करवाए, और वो जब एक बार हो जाए, वो आपके पास प्रूफ आ जाए, उसके बाद आप क्या करें? कार की चाबी रिलीज करें. उसी तरह यहां भी आपको यही करना है. सेम प्रोविजन दे रिटन लाइक सिमिलर टू 194B, that you should ensure that before releasing this benefit or perk, you should ensure the tax has been paid on such benefit or purchased by the other person. और उन्होंने लिमिट बताई यहाँ 20,000 की, यानी 20,000 से कम की वैल्यू है तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है. और उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया कि इंडिविजुअल एचयूओ के प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा अगर पिछले साल उनकी टर्नओवर 1 करोड़ से कम है. अगर प्रोफेशन में है तो 50 लाख से उसकी रिसिप्ट कम है तो उनको ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगी. फिर उन्होंने 285B में बदलाव लाया. ऐसे 285B आपको जानकारी नहीं है, और दिस विल इंक्रीज अवर स्कोप ऑफ सर्विसेज. तो हमें रिटर्न फाइल करने का एक नया स्कोप मिला है. आई एम गोइंग टू पॉइंट आउट दैट what is the amendment in 285B. So this would be an extra work for the professionals out of this finance bill. 285B क्या कहता है? Those who are in production of film, जो प्रोड्यूसर है फिल्म के, उनको एक रिटर्न फाइल करना होता है एन्युअली. तो नॉर्मली हमारे सबके पास ऐसे क्लाइंट नॉर्मली नहीं होते हैं, दैट्स व्हाई वी आर नॉट अवेयर. और वो रिटर्न में क्या है? 50,000 से ऊपर जितने भी पेमेंट उसने किया है प्रोड्यूसर ने फिल्म तैयार करने के लिए, जो भी उसने खर्चे किए हैं जहां 50,000 से ऊपर वैल्यू हो चुकी है, उन सबका उसको नाम देना है, लिस्ट पान देना है, कब पेमेंट किया, किसके लिए क्या काम किया उसने. क्योंकि ये लोग क्या है, सामने वाले रिटर्न भरते ही नहीं थे, ऐसा उनका मानना था. 285B बहुत पुराना सेक्शन, बहुत पुराना. कब का पुराना आप समझ रहे हैं? जब एग्जेम्पशन लिमिट 50,000 की, स्लैब रेट की एग्जेम्पशन लिमिट क्या थी? 50,000, अभी 2.5 लाख है. ठीक है, उतना पुराना है. तो 285B में जो फिल्म प्रोड्यूसर है उसको रिटर्न फाइल करना है कि उसने जिन जिन लोगों को पेमेंट किया फिल्म प्रोड्यूस करते वक्त, जो जो उसने खर्चे किया और जो पेमेंट 50,000 से ज्यादा किया, उनकी सारी डिटेल एनुअल रिटर्न में फाइल करके उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करनी थी. इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैन क्रॉस चेक वेदर दी अदर पार्टी हैज फाइल्ड द रिटर्न और नॉट. मान लो कोई ड्रेस वाला है, फॉर प्रोड्यूसर, ड्रेस वाले का बिल है 3 लाख रुपए और फिल्म प्रोड्यूसर ने उसको 3 लाख चुकाया है, तो फिल्म प्रोड्यूसर 285B में रिटर्न फाइल करेगा. उसमें नाम लिखेगा ड्रेस प्रोवाइडर, ड्रेस डिजाइनर, ड्रेस प्रोवाइडर, जिसको उसने जो जो पेमेंट किया वो लिखेगा. तो इनकम टैक्स कैन क्रॉस चेक विद दिस पीपल विद देयर पान दैट वेदर दे आर फाइलिंग रिटर्न और नॉट. अब उन्होंने ये 285B का स्कोप बढ़ाया है और हमारा भी स्कोप बढ़ाया है. एक रिटर्न फाइल करना है, उन्होंने लिखा है कि फिल्म प्रोड्यूसर को तो रिटर्न फाइल करना ही करना है, अब स्पेसिफाइड पर्सन को भी रिटर्न फाइल करना है. स्पेसिफाइड पर्सन टू एक्सपांड द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट. अब ये स्पेसिफाइड पर्सन कौन है? लेट अस सी. वी हैव गॉट वेरी लेस टाइम, बट लेट मी ट्राई टू कंप्लीट एज अर्ली एज पॉसिबल. इवेंट मैनेजमेंट, तो जो लोग इवेंट मैनेजमेंट में उसको भी ये रिटर्न फाइल करना है. जो लोग डॉक्यूमेंट्री प्रोडक्शन में उनको भी रिटर्न फाइल करना है. जो लोग प्रोग्राम प्रोडक्शन कर रहे हैं फॉर टेलीकास्टिंग ऑन टेलीविजन, उनको भी ये रिटर्न फाइल करना है. और इवन एनी अदर सिमिलर प्लेटफॉर्म, जो लोग स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं उनको भी ये रिटर्न फाइल करना है, या अदर परफॉर्मिंग आर्ट की एक्टिविटी कर रहे हैं, या एनी अदर एक्टिविटी विच गवर्नमेंट में नोटिफाई इन फ्यूचर, तो आगे भी गवर्नमेंट इसका स्कोप बढ़ाएगा. ठीक है. So this is, we need to careful those who are dealing with event management people or those who are producing documentary or program for television, इन सब का भी अब एनुअल रिटर्न जाना है 285B के अंतर्गत. फिर बोनस स्ट्रिपिंग, डिविडेंड स्ट्रिपिंग, they had made changes slightly, they have widened the scope. और खास करके 94 जो 8 है उसके अंदर
उन्होंने सिक्योरिटी भी कवर किया है। 94(8) जो है बोनस ट्रिपिंग, इट वाज एप्लीकेबल अर्लियर ओनली यूनिट्स, इट वाज नॉट एप्लीकेबल टू शेयर्स। तो अब ध्यान दे, बोनस ट्रिपिंग 94(8) इज एप्लीकेबल टू शेयर्स एज वेल बिकॉज दे हैव इंक्लूडेड सिक्योरिटीज इन द स्कोप ऑफ 94(8). सिमिलरली उन्होंने जो सेक्शन थी 94(7) और 8 उसके नीचे एक्सप्लेनेशन था, उसमें जो यूनिट की डेफिनेशन है उसमें उन्होंने बदलाव लाया, और जो सारे ये सारे जो क्या बोलते हैं उसको, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड और अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड और इन्वेस्टमेंट फंड जो है REIT और AIF वगैरह जो है, उसको भी उन्होंने कवर किया है। दैट्स व्हाई 94(7) एंड 94(8) वुड आल्सो बी एप्लीकेबल टू देम। ध्यान दे, कुछ इनकम जो है REIT की, खास करके कुछ डिविडेंड इनकम है, that would be exempt in the hands of few recipients that I am not right now discussing. तो उस सिचुएशन में 94(7) is required to be applied, इसलिए उन्होंने यूनिट का स्कोप बढ़ा लिया, and they said that unit includes units of REIT, INVIT and AIF। फिर हम चल रहे हैं रेवेन्यू मोबिलाइजेशन को लेकर। रेवेन्यू मोबिलाइजेशन में फर्स्ट इज स्कीम फॉर टैक्सेशन ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट, उसको लेकर उन्होंने नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है 115 BBH। दिस 115 BBH इज लाइक सिमिलर टू अनडिस्क्लोज इनकम। सेक्शन 68, 69 सिमिलर प्रोविजन है। उन्होंने बोल दिया है टैक्स रेट इज 30%, वहां 60%, यहाँ टैक्स रेट इज व्हाट 30%। नंबर 1 on transfer of these assets. Number 2, you cannot claim any reduction. Number 3, you cannot claim any expenditure, and you have to pay flat rate 30% if your income includes this. I am just showing that provision 115 BR, that income on transfer of virtual digital asset at the rate of 30%. You cannot claim deduction in respect of any expenditure. Only what you can claim cost of acquisition, वो आप claim कर सकते हैं। तो वर्चुअल डिजिटल एसेट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप क्लेम कर सकते हैं, बट अदरवाइज एनी अदर एक्सपेंडिचर यू कैनॉट क्लेम। यू कैनॉट क्लेम रिडक्शन, सेट ऑफ लॉस, और यू कैनॉट क्लेम इवन डेप्रिसिएशन। तो दैट दे हैव क्लैरिफाइड। और उन्होंने सामने TDS प्रोविजन भी रख दिया 194S कि इसके पर TDS काटना है, और I am reading that 194S, that TDS shall be deducted at the rate of 1% on such payment, and in case payment of such transfer is wholly in kind or partly in kind, and if amount is not sufficient for TDS, then person making payment shall ensure that tax must have been paid. So it is similar to what I have discussed in 194S. तो इन शॉर्ट 194S में आपको TDS काटना है 1%। अब लिमिट क्या है इसको लेकर वो देखें। उन्होंने लिखा है if payer is a specified person and aggregate value is less than 50,000, तो TDS नहीं काटना है आपको। और payer is not a specified person but other case, तो लिमिट है 10,000। तो देखते हैं कि who is specified person। I am reading the definition of specified person. Specified person means ऐसा इंडिविजुअल HUF जिसकी टर्नओवर लास्ट ईयर 1 करोड़ से कम है, अगर प्रोफेशन में है तो 50 लाख से रिसिप्ट कम है, या ऐसा इंडिविजुअल HUF जो बिजनेस ही नहीं कर रहा है, he does not have any business income। तो इन लोगों के लिए लिमिट है 50,000 की और बाकी सबके लिए लिमिट है 10,000 की। दैट इज व्हाट द आइडिया ऑफ अमेंडमेंट। साथ साथ उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया है कि अगर कहीं कंफ्लिक्ट हो रही है, अगर TDS 194S में कट गया तो कोई दूसरी सेक्शन में नहीं कटेगा, तो सवाल उठता है कि 194A जो हमने देखा था लास्ट ईयर आया था कि ई-कॉमर्स ऑपरेटर को टैक्स काटना है जब पार्टिसिपेंट को पेमेंट करना है, तो इस सिचुएशन में 194 वो लगेगा या एस लगेगा। तो उन्होंने क्लियर कर दिया यहाँ एक्ट में ही कि टैक्स शैल बी डिडक्टेड अंडर 194S, यानी आपको ये नया सेक्शन में TDS काटना है, नहीं कि 194A। तो दैट आल्सो दे हैव क्लैरिफाइड। फिर ये हमारे काम कर रही है 115BD। It was applicable to Indian company having specified foreign company outside India. Right now I am not reading it. Phasing out of exemption, ये exemption भी हमारा relevant नहीं है डिस्कशन को लेकर, ये सारे नॉन रेसिडेंट को लेकर है। अब हम जा रहे हैं रेशनलाइजेशन मेजर।
रेशनलाइजेशन मेजर में जो पहला मेजर है 248A का, उसको भी हम बाद में देखेंगे, सॉरी उसको भी हम कवर नहीं कर रहे हैं बिकॉज इट इज मोर पेक्युलरली फॉर नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन। बट द आइडिया इज कि मान लो कभी कभी क्या होता है नॉन रेसिडेंट, आई एम जस्ट लेट मी ब्रीफ इट, कभी कभी नॉन रेसिडेंट हैज cast liability on the payer that you have to bear my income tax liability in India if any। तो मान लो मैं नॉन रेसिडेंट को कुछ पेमेंट करना चाहता हूँ, उसके पर कोई इनकम टैक्स ही बनता है तो मुझे ही उसका भुगतान करना है, ऐसी हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है। ऐसे सिचुएशन में मुझे ही मेरे पॉकेट से TDS जमा करना होगा और मुझे ही वो ग्रॉसिंग अप करके उसको पेमेंट करना होगा। ग्रॉसिंग अप इज रिक्वायर्ड इन दैट केस। अब इस सिचुएशन में मान लो मेरी ये आर्गुमेंट है कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के मुताबिक मेरी कोई टैक्स लायबिलिटी इंडिया में नहीं बन रही है क्योंकि दैट नॉन रेसिडेंट इज नॉट टैक्सेबल, दैट्स व्हाई आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू TDS। if ऐसा मेरा कंटेंशन है, then there is a procedure before EO. EO should pass an order. Now there is a new provision they have incorporated. EO should pass an order. If EO pass an order, I am not required to deduct TDS, then it's fine. If EO hold otherwise, then in that situation, I can prefer an appeal. तो जो अपील के प्रोविजन है वो विड्रॉ करके उन्होंने नई सेक्शन डाल दी और यहाँ जो ऑर्डर होगा वो अपेलेबल कर दिया, तो नथिंग स्पेशल मच। नेक्स्ट, pay attention on screen. 68. I'm not reading in detail, but I am sharing orally. As such, section 68, it talks about you have to prove genuineness of cash credit. If you fail to satisfy assessing officer, your explanation, you fail to offer explanation, or your explanation offered by you is not satisfactory up to the satisfaction of AO, then in both the events, section 68 would be attractive. Now, in this situation, there are conflicting judgments. Can they ask for source of source? जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मेरी बुक्स में रोमिल जो है उसने मुझे 5 लाख रुपए, मैंने लोन लिया रोमिल से, I have borrowed 5 lakh rupees. Now मेरा स्कूटरी चल रहा है, and they ask for the capacity of रोमिल, genuineness in this. I have given all the information, पान दे दिया, रोमिल का ITR भी दे दिया, कैपेसिटी भी है, सब कुछ है। अब वो क्या कर रहे हैं कि रोमिल का मुझे सोर्स सेटिस्फाई करके दो, लेट रोमिल टू सेटिस्फाई दैट ही। मान लो मैंने दिखाया कि रोमिल के जो 5 लाख है, रोमिल के 5 लाख है, रोमिल ने लिए चिंतन ठक्कर से मुझे देने से पहले, ठीक है। तो अब रोमिल शुड प्रूव जेन्युइननेस ऑफ हिज बोरोइंग फ्रॉम चिंतन ठक्कर इन दिस। इफ इट इज नॉट बीइंग डन, यानी सोर्स ऑफ सोर्स, तो कुछ सिचुएशन में हम आर्ग्यू करते थे, आप यू कैन नॉट आस्क फॉर सोर्स ऑफ सोर्स, इट इज समथिंग हाईली अनरीजनेबल। यू कैन नॉट आस्क फ्रॉम मी कि रोमिल चिंतन से लाया तो चिंतन के डॉक्यूमेंट मुझे दो और चिंतन की कैपेसिटी प्रूव करो। इट इज वेरी अनरीजनेबल एंड इम्प्रैक्टिकल, एंड मेनी ऑफ द कोर्ट्स हैव सेड दैट सोर्स ऑफ सोर्स कैन नॉट बी आस्क्ड। इट वाज ऑलमोस्ट मेजॉरिटी कोर्ट हैज गिवन फेवर टू द टैक्स पेयर, लेकिन अभी उन्होंने सेक्शन 68 में बदलाव ला दिया, और ये बदलाव सिमिलर टू क्लोजली हेल्ड कंपनी। क्लोजली हेल्ड कंपनी में अगर शेयर कैपिटल आता है तो वहां वो शेयर होल्डर को प्रूव करना पड़ेगा कि दिस इज फ्रॉम जेन्युइन सोर्सेज। Similarly now, if I have borrowed from Romil, then it is the Romil who has to prove that he has borrowed from genuine sources if he had borrowed and then handed over money to me. ठीक है। If Romil fails, then that 5 lakh will be treated as my income, not Romil's income. It is my income. That is section 68. So it may again go for more litigations in future, which I can envisage. Right now we are not discussing litigation, but this is what the amendment in section 68. फिर ये मैं नहीं देख रहा हूँ ऑफेंसेस और प्रोसिक्यूशन को लेकर कुछ उन्होंने बहुत पुराने सेक्शन चल रहे थे, लेकिन जो ऑफेंस है वो ऑफेंस होने की गुंजाइश ही नहीं है क्योंकि वो सारे चैप्टर डिलीट हो गए इनकम टैक्स से, तो उन्होंने कुछ अमेंडमेंट किए हैं। ठीक है, उससे हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। फेसलेस स्कीम में दे डिसाइडेड इवन ट्रांसफर प्राइसिंग के जो ऑर्डर हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग के 92C एंड 144C DRC, ये भी वो फेसलेस में इंक्लूड करना चाहते हैं, इंक्लूडिंग ट्रिब्यूनल को लेकर भी वो फेसलेस करना चाहते थे, जो हमने लास्ट प्रोजेक्ट में देखा था कि दे विल डू इट बाय 31 मार्च 2022। और कुछ ट्रिब्यूनल की जो प्रोसीजर थी 255 में, दैट दे हैव सेड वी विल डू इट बाय 31 मार्च 23। अब उन्होंने देखा कि पहला उनका फेसलेस सक्सेसफुल नहीं रहा है, इसलिए उन्होंने ये डेडलाइन बढ़ा के 24 कर दी,
और दूसरा ट्रिब्यूनल के बारे में लिखा है कि ट्रिब्यूनल इज नॉट इन अवर कंट्रोल बिकॉज वी आर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड ट्रिब्यूनल इज एडमिनिस्ट्रेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, इसलिए हमें उनके साथ कंसल्टेशन भी करना पड़ेगा, दैट्स व्हाई वी नीड मोर टाइम। तो इन शॉर्ट ट्रांसफर प्राइसिंग को लेकर और ट्रिब्यूनल को लेकर अभी फेसलेस आएगा नहीं 2024 तक, 24 के पहले पहले वो करेंगे। अभी जो प्रेजेंट फेसलेस स्कीम है, ऑनेस्टली स्पीकिंग उन्होंने 90% सेक्शन चेंज कर दिया बिकॉज मेजोरिटी कोर्ट्स हैव स्ट्रक डाउन द ऑर्डर्स पास्ड बाय फेसलेस अथॉरिटीज, मेजोरिटी कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स। क्यों स्ट्रक डाउन किया? क्योंकि जो फेसलेस 144B जो प्रेजेंट है उसमें सबसेक्शन 9 है। सबसेक्शन 9 क्या लिखती है कि अगर ये सेक्शन को फॉलो नहीं किया गया, ये सेक्शन में लिखी प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया, तो इस सिचुएशन में, ध्यान से समझे, इस सिचुएशन में पूरा ऑर्डर नल एंड वाइड माना जाएगा, ऐसा सबसेक्शन 9 में लिखा है। और कोर्ट ने देखा कि भी आप ही लिख रहे हैं कि अगर आप प्रोसीजर फॉलो नहीं करेंगे फेसलेस की तो आपका ऑर्डर क्या माना जाएगा? नल एंड वाइड। तो हमने वही किया, आपका ऑर्डर नल एंड वाइड कर दिया, क्योंकि आपने लिखा है कि अगर आप प्रोसीजर फॉलो नहीं करेंगे तो आपका ऑर्डर नल एंड वाइड माना जाएगा। तो उन्होंने काम क्या किया, आप देखें, मैं आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, बहुत पूरी स्कीम बदल दी है एंड इट इज कंटेनिंग मेजॉरिटी पेजेस ऑफ द फाइनेंस बिल। देख रहे हैं, मैं स्क्रीन घुमा रहा हूं, उसमें एक सबसे बड़ा काम क्या किया उन्होंने, ये करीबन चल रहा है 10 पन्ने फाइनेंस बिल में, उनमें जो सबसेक्शन 9 थी जो कहती है असेसमेंट प्रोसीडिंग वाइड अगर आपने फेसलेस ढंग से एडमिनिस्टर नहीं किया है, अब उन्होंने क्या लिखा है ये पढ़ने लायक है। दिस सबसेक्शन रिफर्स टू वायलेशन ऑफ प्रोसीजर लेड डाउन बाय द लॉ wherever large number of disputes are technical issues because of information technology leading to unnecessary litigation, इसलिए आप ये सेक्शन को ही ओमिट कर रहे हैं। तो दिस इज टू मच बैड। आपको आपकी प्रोसीजर तो फॉलो करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज आपका ऑर्डर तो वाइड ही बना जाएगा। आपने खुद ही लिख दिया, ठीक ही लिखा था उन्होंने, अब वो बोल रहे हैं कि नहीं लिटिगेशन बहुत हो रहा है इस सबसेक्शन को लेकर, इसलिए हम सेक्शन को ही हटा रहे हैं। नाउ टेल मी, हाउ कैन इट बी अ टैक्स पेयर्स चार्टर? इट कैन नॉट बी टैक्स पेयर्स चार्टर। आप एक तरफ टैक्स पेयर चार्टर की बात कर रहे हैं, अगर आप प्रोसीजर फॉलो नहीं करेंगे तो आपका ऑर्डर वाइड माना जाएगा, ऐसा सेक्शन में लिखने में दिक्कत ही क्या है? पर उनका ये कहना है कि जो भी दिक्कतें आई थी वो टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से आई थी, बाकी हमारे ऑफिसर ने तो काम अच्छा ही किया है। And majority cases draft order has not been given. Now law says you have to give what draft order before making the assessment. अब draft order ही नहीं दिया आपने, तो बट ऑब्वियस प्रोसीजरल वायलेशन है, तो आपका ऑर्डर नल एंड वाइड ही माना जाएगा। बट फिर भी वो बोल रहे हैं कि नहीं टेक्निकल प्रॉब्लम थे। नहीं, I'll tell you not technical problem. In 50% cases draft order has not been given because their officers has not been trained up to the mark. ये फेसलेस कैसे कंडक्ट करना है उसकी ट्रेनिंग ही उनको ठीक से दी नहीं गई, ऐसा मेरा मानना है। या फिर intentionally, I think this is a form we should not talk offensive, but the idea is there may be a inadequate training, that would be the reason. ठीक है, अब क्या चेंजेस हैं फेसलेस में? पूरा स्कीम बदल दिया। I have just made a summary here. TPO is transfer pricing assessment is now included in a faceless up to 24. फेसलेस में अब 147 भी फेसलेस होगा, पहले सिर्फ 143 और 144 ही था। फिर आपको याद है 142 की जब नोटिस आती थी फेसलेस में, आपको 15 दिन के अंदर नोटिस रिप्लाई करना था। अब वो बोल रहे हैं नहीं हम नोटिस में टाइम लिखेंगे, उस टाइम के अंदर आपको उसको रिस्पॉन्ड करना है, 15 दिन की डेडलाइन दी है। फिर आर्म्स लेंथ प्राइस कौन डिटरमाइन करेगा? TU डिटरमाइन करेगा, टेक्निकल यूनिट। एक ये चेंज है। फिर ड्राफ्ट ऑर्डर की जो मैंने आपको बताई कहानी, वो उन्होंने हटा दिया, कंसेप्ट ही हटा दिया ड्राफ्ट ऑर्डर का। जहां तक एसएससी को ड्राफ्ट ऑर्डर देना है तो नहीं देना है, अब एसएससी को कोई ड्राफ्ट ऑर्डर नहीं मिलेगा। एसएससी को ऐसा कुछ मिलेगा, इनकम लॉस डिटर्मिनेशन प्रपोजल। अगर आपने जो इनकम दिखाई रिटर्न में वो उसको बढ़ाना चाहता है तो आपको, या आपने लॉस दिखाई है वो उसको घटाना चाहता है तो इनकम लॉस डिटर्मिनेशन प्रपोजल आपको दी जाएगी, आपको ड्राफ्ट ऑर्डर नहीं दिया जाएगा। दैट इज व्हाट द लॉ हैज बीन मॉडिफाइड। ड्राफ्ट ऑर्डर आपको कभी नहीं मिलेगा, आपको इनकम लॉस प्रपोजल डिटर्मिनेशन प्रपोजल मिलेगी। तो दैट इज व्हाट द स्मॉल चेंज दे ब्रॉट इन। फिर ड्राफ्ट ऑर्डर तैयार होगा एनएफएससी की, ठीक है, वो आप। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन फॉर ऑडिट। मान लो ड्यूरिंग स्क्रूटिनी उनको लगा कि आपके बुक्स की स्पेशल ऑडिट करवानी चाहिए, तो एनएफएससी को पावर दे दी है, दे कैन गिव अ डायरेक्शन फॉर स्पेशल ऑडिट। नाउ देयर इज नो नीड फॉर डिजिटल सिग्नेचर,
जस्ट आप रजिस्टर्ड अकाउंट में चले जाइए इनकम टैक्स में लॉगिन होकर, और अगर आप सबमिशन फाइल करेंगे देन दैट सबमिशन इज वैलिड, जैसे अभी हमने फाइल की है। ठीक है, तो दिस आर दी मेजर चेंजेस ऑन फेसलेस। सेक्शन 79A, this is very important in search and survey cases that was discussed in the budget speech. अगर सर्च और सर्वे होता है तो इस सिचुएशन में नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो एडिशनल इनकम डिस्क्लोज करते हैं ड्यूरिंग सर्च और सर्वे। अब मान लो सर्च हुई है या सर्वे हुआ है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सर्वे। सर्वे हुआ मान लो 10 मई को, 10 मई 21 को, ठीक है, और मैंने कुछ 2 करोड़ रुपए मेरी अनडिस्क्लोज इन्वेस्टमेंट स्टॉक में मिल गया और कुछ मेरी अनअकाउंटेड कैश मिल गई, दोनों मिला के 2 करोड़ रुपए और मैंने डिस्क्लोज कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मई को मेरी सर्वे हुई है, मई 21, और मेरे पास फाइनेंशियल ईयर पूरा पड़ा 31 मार्च 22 था, यानी ऑलमोस्ट मेरे पास 11 महीने पड़े। तो 11 महीने में मैं क्या करूंगा, जो बिजनेस करूंगा उसमें लॉस कर दूंगा, और मैं लॉस कर दूंगा 1,70,00,000 का। तो मेरी इनकम है 2 करोड़ और अगले 11 महीने में लॉस करूंगा 1,70,00,000 और मैं इनकम दिखाऊंगा 30 लाख रुपए। आई विल पे टैक्स ऑन 30 लाख। तो दीज पीपल आर डूइंग इट बाय हुक एंड पुक। बिजनेस में लॉस दिखा देंगे और सर्वे की इनकम जो है उसके पर टैक्स नहीं देंगे। तो दिस वाज, यानी या लॉस करके सेट ऑफ ले लेंगे। ठीक है, तो व्हाट द अमेंडमेंट दे ब्रॉट इन बाय स्पेशल प्रोविजन सेक्शन 79A। सेक्शन 79A कहता है कि नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट द एक्ट, अगर सर्च हुई या रिक्विजिशन हुआ या सर्वे हुआ एक्सेप्ट टीडीएस सर्वे, टीडीएस सर्वे को सेक्शन लागू नहीं होगी, total income includes undisclosed income, then no set off against such undisclosed income of any loss brought forward or unabsorbed depreciation shall be allowed to the SSC under any other provision of this act in computing its total income. तो आपको सेट ऑफ नहीं मिलेगा, आपको लॉस नहीं मिलेगा। आप ध्यान से देखेंगे क्या लिखा है, unabsorbed against such undisclosed income any loss brought forward or otherwise or unabsorbed depreciation shall be allowed. जहां तक एक्सपेंडिचर का सवाल है, यू कैन क्लेम एक्सपेंडिचर, बट यू कैन नॉट क्लेम अनएब्सॉर्ब्ड लॉस और यू कैन नॉट क्लेम इवन करंट लॉस, दैट यू कैन नॉट क्लेम इट। सो दैट इज द अमेंडमेंट दे मेड इट। फिर अनडिस्क्लोज इनकम है, उसकी डेफिनेशन बताइए। आई एम राइट नाउ नॉट investing time for it. It's very interesting definition, but normally undisclosed income means income which has not been recorded before date of search or before date of survey. That is called undisclosed income. Here 148, I think what I suggest, 148 itself requires 2 hours discussion. I'm just briefing certain parts in, okay, already I think we reached to our time horizon 7 o'clock. Let me see other proposal and then we'll take up at the end. But honestly speaking, I'll tell you 147 they have drastically modified. जो आपने लास्ट बजट में सुना था वो कुछ नहीं है, and I am planning to conduct lecture because I have received a call from the branch also. Last year also in the month of March I conducted lecture on 147. तो 147 हम डिटेल में देखेंगे, बट आइडिया इज जो उन्होंने सपने दिखाए थे हमें कि 147 बहुत कम सिचुएशन में किया जाएगा और कोई क्या बोलते हैं अनरीजनेबल पावर नहीं है अथॉरिटी को रीओपनिंग के। अब ये सारा जो उन्होंने सारी अच्छी अच्छी बातें की थी लास्ट ईयर इंक्लूडिंग टैक्स पेयर चार्टर एंड दिस एवरीथिंग हैज बीन गॉन, और अभी तो उन्होंने इतना स्कोप बढ़ा दिया है 147 का। दैट्स व्हाई प्रोफेशनल्स शुड बी वेरी मच क्लियर व्हाइल हैंडलिंग 147 मैटर नाउ. So I am coming to that at the end after dealing with other proposals in a fast way in next 10 minutes, and then we will see. Just pay attention on screen. But majority we have discussed which are relevant for routine practice. This 147 I have covered direct here from my side, so as to make you understand what the job they have done. 271 AB, AAC and AD. उनका उन्होंने कुछ रेशनलाइजेशन किया. रेशनलाइजेशन उन्होंने क्या किया, पहले पावर कमी एओ के थे, एबी एसी एडी. एडी आपको मालूम है बोगस बिल है जीएसटी के, बोगस परचेज यानी परचेज प्रॉपर नहीं है, तो उसके लिए आपको पेनल्टी लगेगी. एसी जो है आपकी सेक्शन 68 69 की, तो उसमें सिर्फ एओ को पावर दिए गए थे पेनल्टी करने के, अब पावर बढ़ा के कमिश्नर अपील को दे दिया है. तो कमिश्नर अपील कैन ऑल्सो इम्पोज पेनल्टी. तो पावर्स आर ऑल्सो नाउ गिवन टू कमिश्नर अपील if you had not levied penalty, or commissioner appeal may come to knowledge about bogus purchase, then commissioner appeal can also impose penalty.
फिर 272A की जो पेनल्टी है, अगर आपने TDS सर्टिफिकेट टाइम पे नहीं दिया या आपने मान लो 15G15H टाइमली सबमिट नहीं किया, तो ऐसे सिचुएशन में पेनल्टी थी 100 रुपी पर डे, वो उन्होंने बढ़ा के 500 रुपए कर दिया, 500 रुपी पर डे। दिस इज समथिंग ह्यूज। सेक्शन 179 में अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट ये कहता है कि लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन लिक्विडेशन, ऐसा हेडिंग था, अब उन्होंने वर्ड लिक्विडेशन हटा दिया। यानी इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, ध्यान से समझे। अगर डायरेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पास से टैक्स रिकवर नहीं हुआ, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पास से टैक्स रिकवर नहीं हुआ, तो डायरेक्टर से वो रिकवर करेंगे, इवन इफ कंपनी इज नॉट इन लिक्विडेशन। तो उन्होंने जो हेडिंग था सेक्शन का, डायरेक्टर्स, लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लिक्विडेशन, उसमें जो इन लिक्विडेशन वर्ड था उसको ओमिट कर दिया। यानी दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल इवन इफ देयर इज नो लिक्विडेशन। यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने अगर टैक्स नहीं चुकाया और रिकवर नहीं कर पाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो किससे वो रिकवर करेगी? ड्यूरिंग द पीरियड जो डायरेक्टर थे उनसे रिकवर करेगी। So that was the amendment brought in section 179. There was a change in heading of the section. अब बहुत सारे ट्रस्ट के अंदर चेंजेस हैं, that I would like to also discuss. Let me finish remaining. फिर हम ट्रस्ट देखते हैं। ट्रस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 148 देखते हैं, 5-7 मिनट। आई थिंक यस, लास्ट बिना ट्रस्ट एक है स्लम सेल। डेफिनेशन ऑफ टर्म स्लम सेल। अब स्लम सेल दे ऑलरेडी amended the definition last budget, Finance Act 21, to include stump exchange as well. And even if there is a transfer otherwise than sale, sale नहीं, जैसे मान लो सेल में नॉर्मली क्या रहता है, कंसिडरेशन इज रिसीव्ड इन मनी, ठीक है। लेकिन मान लो कि मैंने यूनिट बेच दिया मेरा स्लम सेल में, और सामने में पैसा नहीं ले रहा हूँ, उस कंपनी के शेयर ले रहा हूँ सामने, then it was not treated as slum sale, it was treated as slum transfer actually. तो उसको लेकर लिटिगेशन चल रहे थे और एसएससी के फेवर में थे। तो उन्होंने अब लास्ट ईयर अमेंडमेंट कर दिया था कि स्लम सेल में जो वर्ड सेल था उसके बजाय ट्रांसफर कर दिया। यहाँ वर्ड सेल था, पुराने लॉ में क्या था, 242C में सेल था। उनको ऑलरेडी लास्ट बजट में फाइनेंस एक्ट 21 में वर्ड क्या कर दिया, ट्रांसफर। लेकिन आप पूरी डेफिनेशन पढ़ेंगे, ट्रांसफर ऑफ वन और मोर अंडरटेकिंग बाय एनी मींस फॉर ए लंप सम कंसेशन विदाउट वैल्यू बीइंग असाइन्ड टू इंडिविजुअल एसेट एंड लायबिलिटी इन सच सेल लिखा है। यहाँ ट्रांसफर वर्ड करना रह गया, यहाँ आना क्या चाहिए वर्ड। अब यहाँ वर्ड ट्रांसफर हो गया, तो यहाँ भी क्या वर्ड होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए। लेकिन वहां ड्राफ्टिंग एरर थी, तो अब वो ड्राफ्टिंग एरर उन्होंने कवर किया और सेल के बजाय ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो दैट वाज द अमेंडमेंट। अब मजे की बात यह है कि ड्राफ्टिंग एरर दे हैव करेक्टेड देयर इन एंटायर डेफिनेशन, लेकिन जो नाम है क्या है, स्लम सेल है। अब स्लम सेल को तो चेंज कर दो, जो डेफिनेशन स्लम ट्रांसफर लिखना चाहिए आपको, तो वहां उनको ड्राफ्टिंग एरर नहीं दिख रही है, वहां स्लम सेल ही लिख रहे हैं। इट्स ओके, वी अंडरस्टैंड दैट देयर आर लिमिटेशंस। नाउ लेट अस मूव बैक टू चैरिटेबल ट्रस्ट एंड 148। अच्छा, ये गुडविल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने गुडविल में अगर कोई डिप्रेशन लिया है, तो लास्ट ईयर अमेंडमेंट आया गया था कि गुडविल पे अब डिप्रेशन नहीं मिलेगा, आपको ब्लॉक में से रिड्यूस करनी है। अब मान लो हम ब्लॉक में से जब रिड्यूस करते हैं नोशनली और ब्लॉक की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, देन इट इज ट्रीटेड एज ट्रांसफर, ऐसा वो लिखना भूल गए थे। आई रिपीट, मान लो आपका इंटेंजिबल का ब्लॉक है 50 लाख का, और आप गुडविल नोशनली रिड्यूस कर रहे हैं, वो हो रही है 52 लाख की। तो 50 लाख माइनस 52 करेंगे, जो 2 लाख बना, वो 2 लाख वुड बी ट्रीटेड एज डीम्ड ट्रांसफर, यू हैव टू पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 50। तो दैट वाज द अमेंडमेंट। डीम्ड ट्रांसफर का ये अमेंडमेंट कर दिया उन्होंने, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। इट इज ट्रीटेड एज रिडक्शन ऑफ गुडविल इज ट्रीटेड एज डीम्ड ट्रांसफर, deemed to be the transfer। फिर जो इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं 119 में सीबीडीटी को पावर दी है लेट फी वेव करने के। जो 234F की लेट फी है, सीबीडीटी कैन रिड्यूस और वेव। तो वी मे फाइंड इन फ्यूचर सम नोटिफिकेशन, सम सर्कुलर ऑफ सीबीडीटी फॉर वेवर ऑफ 234F लेट फी। देन 263 में बदलाव लाया है। आई एम नॉट शेयरिंग दैट पार्ट। नाउ लेट अस कम टू दी Romil bhai, what I am doing is I am taking 5-10 minutes charitable trust, okay, and 5-10 minutes I'll take 148, okay. And I recommend to the committee of study circle that there should be a separate lecture, okay, on this, okay, which requires 2 hours minimum for each discussion. But I'll highlight the way I have highlighted
but they are very good. Some changes are very good and some changes are very harsh so far as charitable trusts are concerned. So let me share step by step on the screen. अब थोड़ी देर 10-15 मिनट के लिए बची गई होत ना, we would have saved if disturbance would not have been there. Yes. एक्शन करो तो क्यों आता है? नहीं, but I have got certain commitments and I have got certain commitments. Okay. Let me now share the important highlights of the trust. Yes, pay attention. First and foremost, I have not shared the screen. Okay. First and foremost, there are few charitable institutions covered by Clause 4, 5, 6, 6A of 1023C, which is having similar treatment like Section 11, 12, and 13. So what they have done, 1023C, these clauses I have mentioned, certain universities, colleges, and charitable hospitals, they have got similar tax treatment like under Section 11, 12, but they were not exactly similar. First come what, first job they have done कि जहां जहां डिफरेंसेस थे उन्होंने दोनों तरफ सर्किल इक्वल कर दिया. यानी अगर सेक्शन 11, 12 में कुछ प्रोविजन है लेकिन 1023C में नहीं है तो वहां अमेंड कर दिया. अगर 1023C में है और 11, 12 में नहीं है तो 11, 12 अमेंड कर दिया. That is number one. The first job they have done is this. Number one. ठीक है. Second, so I am not sharing much that part. Second important amendment is books of account is now compulsory for charitable trust or institutions if their total income before claiming exemption exceeds exemption limit. So they have made an amendment under section 12A कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट कंपल्सरी मेंटेन करने अगर आपकी इनकम एग्जेम्पशन लेने से पहले 2.5 लाख से ऊपर है. ठीक है, तो दिस इज दे मस्ट सेल कीप एंड मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स. फिर 3.2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप अनरीजनेबल बेनिफिट दे रहे हैं ट्रस्टी को या स्पेसिफाइड पर्सन जो सेक्शन 13(3) में बताया गया है तो आपके लिए पेनल्टी है 271 AAE. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 13(1)C एक आधा घंटा डिस्कशन चलता है उसके ऊपर. एंड सेक्शन 13(3) ठीक है, who are called specified person और apart from trustees. ठीक है, अगर ट्रस्ट ने इन लोगों को कोई बेनिफिट दिया एज पर 13(1)C और 13(3) तो ट्रस्ट को बाकी सारे कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे ही होंगे. इसके अलावा ट्रस्ट को पेनल्टी चुकानी पड़ेगी 271 AE में. आई रिपीट, पेनल्टी ऑन ट्रस्ट. बी केयरफुल. ट्रस्टी के ऊपर पेनल्टी नहीं है, ट्रस्ट के ऊपर पेनल्टी. और पेनल्टी क्या है आप देखें, पेनल्टी है जो भी आपने बेनिफिट दिया उसकी इक्वल अमाउंट. यानी मान लो कि आपने ट्रस्टी को लोन दिया, यू कैन नॉट गिव लोन टू ट्रस्टी विदाउट इंटरेस्ट. और मान लो विदाउट सिक्योरिटी अगर आपने ट्रस्टी को लोन दिया 25 लाख रुपए, या ट्रस्टी का कंसर्न इन विच ट्रस्टी हैज गॉट सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, अगर उसकी पार्टनरशिप फर्म को आपने 25 लाख लोन दिया तो ट्रस्ट को 25 लाख की पेनल्टी लगेगी. नंबर वन. नंबर टू, अगर ये वायलेशन आपने दूसरी बार किया तो आपको डबल पेनल्टी लगेगी. यानी एक बार किया तो ठीक है, लेकिन दूसरी बार किया देन दे हैव सेड सम equal to 200% of these amount if violation is noticed again in subsequent years. So this is very very important that you should keep in mind. फिर ये रजिस्ट्रेशन और कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन को लेकर कुछ रेशनलाइजेशन के प्रोविजन है that I am not right now discussing. They are very minute provision, but it was also a good move क्योंकि अभी हमको मालूम है कि सारे जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं चैरिटेबल के वो ऑटोमेटेड ऑनलाइन हो रहे हैं. तो कुछ बोगस ट्रस्ट भी रजिस्टर हो जाएंगे. So there should be a proper power should be given to the principal commissioner or commissioner to cancel registration when it is noticed at a later stage that these trusts are ingenuine. और दूसरी लिमिटेशन ये थी कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की कोई डेडलाइन नहीं थी. अगर आपको नोटिस मिली फिर कितने टाइम में कमिश्नर उसको कैंसिल करेंगे तो उसकी कोई डेडलाइन नहीं थी. तो उन्होंने डेडलाइन डाल दी है कि जिस क्वार्टर में नोटिस मिलेगी उस क्वार्टर के एंड से 6 महीने, पता नहीं नई टाइम लिमिट है, जिस क्वार्टर में आपको नोटिस दी गई उसके एंड से 6 महीने के अंदर कमिश्नर क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे. तो आई हैव जस्ट ब्रीफ्ड यू अबाउट दैट रजिस्ट्रेशन एंड कैंसिलेशन. मोर पर्टिकुलर दीज अमेंडमेंट्स आर इन 12AB, बट दैट वन शुड रियली रीड इट. फिर जो मैंने बताया दोनों प्रोविजन के बीच में इनकंसिस्टेंसी थी तो वो उन्होंने कंसिस्टेंसी कर दिया है.
उसमें जो एक्यूमुलेशन है, एक्यूमुलेशन को लेकर क्या अमेंडमेंट आया, ध्यान से समझिए। अगर आप एक्यूमुलेट करते हैं इनकम 5 साल के लिए, और अगर आप 5 साल में खर्च नहीं करते तो छठे साल में टैक्सेबल होती है। कौन से साल में? छठे साल में। दैट मींस यू विल गेट एक्स्ट्रा 1 ईयर। अब उन्होंने अमेंडमेंट कर दिया, यू विल नॉट गेट एक्स्ट्रा 1 ईयर, इट शुड बी टैक्स इन द लास्ट ईयर इटसेल्फ व्हेन पीरियड ऑफ एक्यूमुलेशन एंड्स। यानी अगर आपने 5 साल के एक्यूमुलेट किया और 5वें साल में खत्म खर्च करना रह गया एक्यूमुलेटेड इनकम, तो 5वें साल में ही क्या हो जाएगा, आपको टैक्स लग जाएगा। So that is what the amendment they have made it. Now next is this is very, very important. They brought certain clarity in certain circumstances. Pay attention. This has been noticed by various practitioners, including Gandhinagar. I know some of the practitioners. कि ट्रस्ट का मान लो 10B फाइल नहीं हुआ तो एग्जेम्पशन मिलेगा नहीं, ट्रस्ट इज नॉट फाइल रिटर्न इन टाइम तो एग्जेम्पशन विल नॉट बी अलाउड। उस सिचुएशन में हमने देखा कि उन्होंने क्या किया, सीपीसी बैंगलोर ने जो ग्रॉस रिसिप्ट थी उसको ही टोटल इनकम मान दिया। अब ट्रस्ट ने भाई खर्चे तो किए, तो इनकम हैज टू बी एन इनकम। यू आर नॉट ए वैट अथॉरिटी, यू आर नॉट ए जीएसटी अथॉरिटी दैट शुड टैक्स द टर्नओवर, यू शुड नॉट टैक्स द रिसिप्ट ऑफ द ट्रस्ट। तो सीपीसी बैंगलोर ने क्या कर दिया, अगर आपने रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं किया, आपने ऑडिट रिपोर्ट नहीं दिया, तो आपका पूरा एग्जेम्पशन नहीं मिल रहा है। इसलिए उन्होंने ग्रॉस इनकम को ही क्या मान लिया, ग्रॉस रिसिप्ट को, जो डोनेशन आया दैट इज ट्रीटेड एज टैक्सेबल इनकम। तो अब उन्होंने अमेंडमेंट किया, क्लैरिफाई किया अमेंडमेंट करके कि आपने जो एक्सपेंडिचर किए हैं फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रस्ट दे आर डिडक्टिबल, तो आपको उसका डिडक्शन मिलेगा, नंबर 1। एंड दे हैव क्लैरिफाइड कि आपको 40A और 40A3 और 40A3 है, ये सेक्शन आपको लागू होगी। अगर आपने टीडीएस नहीं काटा है तो एक्सपेंडिचर डिसअलाउ होगा, अगर आपने कैश पेमेंट किया है 10,000 से ऊपर तो एक्सपेंडिचर डिसअलाउ होगा। ये सारा आपको प्रोविजन ऐसे भी वो लागू होते ही है ट्रस्ट को लेकर, तो बट दैट दे हैव क्लैरिफाइड। तो दिस इज दी गुड मूव कि आपकी ग्रॉस इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, आपको एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलेगा। सेकंड क्या था, कभी कभी आपने वायलेशन कर दिया, जैसे मान लो ट्रस्टी है, ट्रस्टी को आपने कुछ बेनिफिट दे दिया, दैट इज वायलेशन ऑफ सेक्शन 30। अब पूरा ट्रस्ट है, उसकी इनकम है 25 लाख रुपए, ठीक है, और आपने ट्रस्ट को मान लो 2 लाख रुपए लोन दे दिया, अनसिक्योर्ड लोन दे दिया, तो आपने वायलेशन किया है। तो आइडियली यू शुड बी टैक्स ओनली अप टू 2 लाख, नॉट ऑन एंटायर 25 लाख, ठीक है, एज एट अ मैक्सिमम मार्जिनल रेट। तो दिस वेयर द बॉम्बे हाई कोर्ट जजमेंट रॉन्ग, बट इट इज ओनली जजमेंट अवेलेबल एज पर माय नॉलेज एंड व्हिच आई वाज इवन डिस्कसिंग एट वेरियस फोरम्स। अब उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि अगर कोई वायलेशन हुआ है तो ओनली दैट पार्ट ऑफ इनकम व्हिच इज सब्जेक्ट टू वायलेशन दैट वुड बी टैक्स एट 30%, और जो बाकी इनकम है दैट वुड बी टैक्स एट नॉर्मल रेट एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल ईओपी, यानी स्लैब रेट एप्लीकेबल होगा। तो दैट वाज अ गुड मूव, आई एम शेयरिंग दैट पार्ट ऑन द स्क्रीन। And they have also clarified that if you do violation, then you will not get, I'm sorry. Okay. They have also clarified that trust cannot claim deduction for previous losses or expenditure if it has already been allowed under any other provision of this act. So I think these are the major changes we can say. Look at this. It says that suppose there is a violation of 13(1)(c), only that part of income which is in violation, it will be taxable at the rate of 30%. So that they have given a special section 115 BBI that would be taxable at 30%, and balance income would be taxed as per normal slab rate. They have clarified, and that income you will not get any deduction, you will not get set off, you will not get any expenditure.
तो दिस वाज अ वेलकम मूव फॉर द ट्रस्ट। ATG को लेकर भी एक छोटा सा चेंज है, लेट मी शेयर दैट। They have said that now if this trust, temple, mosque, gurudwara, church, etc., when they have received voluntary contribution for renovation, repair of temple, church, etc., then they should treat as a part of corpus of trust, and they should apply only for corpus. And they should not apply for any other person. They should not even give donation to other person. They should maintain corpus separately. They should invest under 11(5). अगर ये violation कर रहे हैं इसका, then it will be treated as income. It will be deemed to be the income of the trust in the year in which violation takes place. तो ये पैसे लेकर खर्च नहीं कर रहे थे, तो now they have decided that they will tax it as a special income. So that is what the special amendment for ATG that they made it. और लास्ट है कि हम डिडक्शन तभी ले पाएंगे when we make actual payment of expenditure. कभी कभी हम क्या करते हैं, this is very important, pay attention. Now this is very much affecting to every charitable trust. And I recommend to every practitioners that you should ask them to prepare receipt payment account. Don't prepare your return based on income expenditure account. हम जो ऑडिट रिपोर्ट साइन करने वाले हैं वो इनकम एक्सपेंडिचर पे करने वाले हैं, बट डोंट प्रिपेयर रिटर्न ऑफ ट्रस्ट नाउ ऑन इनकम एक्सपेंडिचर, प्रिपेयर रिटर्न ऑफ ट्रस्ट ऑन कैश बेसिस। उन्होंने क्लियर कर दिया है कि अगर आपको डिडक्शन लेना है तो लॉ क्या कहता है कि 85% मस्ट हैव बीन अप्लाइड फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रस्ट। That application has to be an actual payment. Law amendment क्या कर दिया उन्होंने, actual payment. इसलिए मान लो आपके अनपेड है कोई, मान लो क्रेडिटर पड़े हैं बुक्स में और आपने पूरा एक्सपेंडिचर डेबिट कर दिया है, then you cannot claim. It will not be treated as application of income. It will be treated as application of income when you make actual payment. It is like 43B. ऐसा समझ लीजिए, it is like every expenditure of trust is like 43B. Every expenditure. इसलिए आपको करना क्या है, उनको रिसिप्ट पेमेंट तैयार करने को बोलना है, और जो पेमेंट हुआ है दैट विल बी ट्रीटेड एज व्हाट, एप्लीकेशन ऑफ इनकम। दैट्स ऑल। बियॉन्ड दैट यू कैन नॉट क्लेम एनी एप्लीकेशन ऑफ इनकम। दैट इज द वर्स्ट अमेंडमेंट मेड फॉर चैरिटेबल ट्रस्ट। So now trust cannot claim deduction for provisions of expenses or unpaid expenses. Two words I am using: provision for expenses and unpaid expenses. So that is the biggest change in the trust. Now let me share 148. अगर आपको ध्यान है लास्ट बजट में उन्होंने 147 कब करने वाला था, सिर्फ दो सिचुएशन में। अगर वो पान पे फ्लैग करेंगे, कोई इंफॉर्मेशन है आपके केस में और पान पे फ्लैग करेंगे, तो फ्लैगिंग की सिचुएशन में आपको 147 करेंगे। और C&AG का अगर ऑडिट ऑब्जेक्शन है और वो फाइनल ऑडिट ऑब्जेक्शन है, तो उस सिचुएशन में दे विल डू 147 ओनली इन दिस टू सिचुएशन। एंड थर्ड इज सर्च एंड सर्वे। अब उन्होंने क्या अमेंडमेंट किया आप देखें, आई एम जस्ट शेयरिंग। डायरेक्ट मैंने लिया है, पूरा मॉडिफाई किया है आपकी डिस्कशन के लिए। अब देखें एक्सप्लेनेशन। डिमिंग एस्केपमेंट जो है, इंफॉर्मेशन विच सजेस्ट दैट इनकम हैड एस्केप्ड असेसमेंट, उन्होंने वर्ड फ्लैग निकाल दिया। अब देख रहे हैं, इंफॉर्मेशन फ्लैग, जो फ्लैग वर्ड है उसको ओमिट कर दिया। यानी बोर्ड आपके बांध पे फ्लैग नहीं करेगी। अगर उनकी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी में आपका नाम आता है तो आपका क्या हो जाएगा, 147 हो जाएगा। फिर जो फाइनल ऑब्जेक्शन था C&AG का, वो वर्ड उन्होंने वो पूरा क्लोज ही ओमिट कर दिया, और उसके बजाय उन्होंने सिंपल वर्ड लिख दिया एनी ऑडिट ऑब्जेक्शन। यानी डिपार्टमेंट का इंटरनल ऑडिट ऑब्जेक्शन भी आया तो आपका 147 पक्का। फिर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट की वजह से इंफॉर्मेशन मिली तो आपका 147 पक्का। फिर उन्होंने एक सेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सेंटर तैयार किया है जो भी इफेक्टिव होने वाला है 135A में। उसमें जो जो इंफॉर्मेशन आएगी आपकी, अगर ये आया तो आपका 147 पक्का। और यहां तो आपको अपॉर्चुनिटी भी नहीं देंगे, सीधी आपको 148 की नोटिस देंगे, ऐसा भी एक अमेंडमेंट कर दिया उन्होंने। और सबसे खराब जो है ये है, सबसे खराब, एनी इंफॉर्मेशन विच रिक्वायर एक्शन इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल और कोर्ट। लेट मी एक्सप्लेन। जैसे मान ले कोई मेरा क्लाइंट है, उसकी मैटर ट्रिब्यूनल में है सेक्शन 68 को लेकर, और ईओ ने, अभी एक क्लाइंट है मेरे पास, कोई ट्रेडिंग कंपनी है, मुकेश ट्रेडिंग कंपनी करके है, बहुत बड़ा ट्रेडर है, काफी करोड़ 70-80 करोड़ टर्न हो रहा है। अब उसके अंदर 2 करोड़ की अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट ऐड होगी। कितने करोड़ की? 2 करोड़ की। 2 करोड़ में करीबन 200 नाम है, 200+। ठीक है। अब ये 200 नाम में से करंट ईयर के सिर्फ 5 नाम है, बाकी सारे पुराने हैं। तो आइडियली सेक्शन 68 विल बी एप्लीकेबल ओनली फॉर द
cash credit, new cash credit during the current year. It cannot be applied for earlier years. That is the law. इसलिए अब मैं ट्रिब्यूनल में जाऊंगा और ट्रिब्यूनल में बोलूंगा कि साहब ये एडिशन जो भी है बहुत 2 करोड़ है, लेकिन 2 करोड़ में से 1 crore 80 lakh is for earlier year, that cannot be added in these year. तो ट्रिब्यूनल क्या करेगी, 1 crore 80 lakh निकाल देगी बिकॉज ऑफ माई आर्ग्यूमेंट. ठीक है. अब अमेंडमेंट क्या आया यहाँ कि बिकॉज ऑफ दिस 1 crore 80 lakh आर्ग्यूमेंट पर्टेन्स टू विच ईयर, प्रायर ईयर. तो दिस इज एन इंफॉर्मेशन. अब जब ये ऑर्डर पड़ेगा तो ये को मालूम पड़ेगा कि ये कौन से साल में करना चाहिए एडिशन, प्रायर ईयर में. ये इन्फॉर्मेशन उसको किस में से मिली, ट्रिब्यूनल के ऑर्डर में से मिली. तो अब वो क्या करेगा, प्रायर ईयर का रीओपनिंग करेगा. दिस इज वर्स्ट अमेंडमेंट. तो नाउ देयर विल बी अ प्रायर ईयर रीओपनिंग, नंबर 1. दिस इज वेरी वेरी एग्रेसिव अमेंडमेंट. अब दूसरा जो बड़ा अमेंडमेंट है दैट आई एम शेयरिंग, आपको याद है 50 लाख की एक लिमिट थी. अगर रीओपनिंग करना है 3 साल से ऊपर, I am reading that and then we'll end the sessions. 3 years but not more than 10 years, they can reopen the case. Agar income which has escaped assessment is represented in the form of asset and which is likely to exceed 50 lakh rupee or more for that year. Oh, I have not shared the screen, I am sorry. तो लास्ट ईयर उन्होंने ऐसा बताया था कि 3 साल से ऊपर उनको रीओपनिंग करना है तो दे कैन रीओपन ओनली व्हेन 50 लाख से ऊपर होना चाहिए. दैट ईयर वर्ड है, एक साल के 50 लाख की लिमिट, एंड इट शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय एसेट. और एसेट की उन्होंने डेफिनेशन भी लिखी थी. ठीक है. इसलिए हम लोग सब बहुत खुश थे कि अगर मेरा कोई बोगस एक्सपेंडिचर है 50 लाख से ऊपर का तो दे कैन नॉट डू एनीथिंग. ठीक है. अगर कोई मेरा बोगस ट्रांजैक्शन है कोई भी जो उनको बाद में मालूम पड़ा, बट इट इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय एसेट, देन दे कैन नॉट डू एनीथिंग. और बहुत सारे सेमिनार्स हुए, इंक्लूडिंग आई हैड टेकन सेमिनार, बट मेनी प्रोफेशनल्स वेयर सो एग्रेसिव, और सब लोग भूल गए कि ये रिकॉर्डिंग हो रहा था. मैंने तो फेस टू फेस लिया था. ये क्या हो रहा था, रिकॉर्डिंग हो रहा था. तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट वालों ने सुना होगा ना. तो अब उन्होंने क्या अमेंडमेंट कर दिया आप देखें, एंड देन वी एंड द सेशन. अमेंडमेंट क्या किया, 3 years नॉट मोर देन 10 years, और उन्होंने 3 वर्ड लिखे, एसेट, एक्सपेंडिचर और एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और वर्ड लिखा 50 लाख रुपी और मोर. अब ऊपर देखें, पुराने में क्या वर्ड था, दैट ईयर वर्ड था. अब देख रहे हैं दैट ईयर, 50 लाख रुपी और मोर फॉर दैट ईयर. अब क्या लिखा, 50 लाख रुपी और मोर. बस यहाँ अमेंडमेंट खत्म हो गया. दैट ईयर वर्ड नहीं लिखा, और एक नया प्रोवाइजो इंसर्ट किया, ये वाला. और उन्होंने लिखा, पे अटेंशन, उन्होंने लिखा कि अगर ये 50 लाख से ऊपर वाला है और उसकी असर 1 से ज्यादा साल पर पड़ रही है तो वो सारे साल खोल देंगे. इन शॉर्ट, दिस लिमिट इज नॉट फॉर 1 year, दिस लिमिट इज फॉर व्हाट, मोर देन 1 year. बट इनडायरेक्टली लिखा, ऊपर दैट वर्ड निकाल दिया और नीचे एक सबसेक्शन बड़े डाल दिया कि अगर ये 50 लाख वाली जो एसेट है या एक्सपेंडिचर है या एंट्री की इम्पैक्ट 1 से ज्यादा साल के ऊपर पड़ रही है, देन यू विल रीओपन फॉर ऑल दिस ईयर्स, मीनिंग देयरबाय ही कैन रीओपन. 50 lakh is not an individual limit, it is an aggregate limit. So I think I have justified the subject for which I have been invited. I slightly took more time and I am thankful to the participant that they permitted me, including the committee members, and they remained present and they listened patiently. I am thankful to the God who had given me this wonderful body, mind, and capacity to interpret, capacity to deliberate, deliver, discuss. I am thankful to the committee once again for providing me this opportunity to share my views on this budget. Thank you. Thank you, sir. Now, on behalf of Ghanaian CP Thakkar, I once again thank regarding such a wonderful presentation on the technical analysis of the finance bill for 2022 for direct taxes. And we once again arrange once more seminar taking 148 of the act in future. Thank you. I think shall we end? Hello. Thank you, sir. Thank you, Chavda sir. I think thank you. થોડો સમય ઓછો પડ્યો, આપણી 10-15 મિનિટ બીજી ગઈ, પણ અધરવાઇઝ પણ આઈ ડેલ્ટ ઇન ડિટેલ. ટ્રસ્ટ બી કરવું હશે તો આપણે ફરી એકાદ વખત જરૂર લાગશે તો કરીશું એકાદ સેશન. ના 100% સાહેબ, ટ્રસ્ટમાં સાહેબ ઘણા બધા ડાઉટ્સ છે, આપણે એમાં બી સાહેબ એક કશો વાંધો નહીં, રિક્વેસ્ટ આપણે સ્પેશિયલ સેશન કરશું રાકેશભાઈ. સ્પેશિયલ સેશન આપણે કરીશું. તો આઈ થિંક શેલ વી એન્ડ, મારે છે ને થોડુંક એક જગ્યાએ મારે પહોંચવાનું છે. પ્રેઝન્ટેશન ખાલી શેર થાય તો પોસિબલ કરજો ને. પ્રેઝન્ટેશન મેમોરેન્ડમ જ છે, મારું કશું Okay. નથી. નિર્મલા સીતારામનજી આપ્યું છે એ જ છે. મેં ખાલી પેલો ડાયરેક્ટ મૂક્યો છે સેક્શન 148 નો, બસ. Okay. બીજું કશું જ નથી. Okay. પ્લીઝ. થેન્ક યુ. ઓકે સાહેબ, થેન્ક યુ.